without my voice is इको है करुण जी कुछ इसमें. ये ऐसा तो नहीं आप कोडलेस स्पीकर से तो नहीं बोल रहे? No, sir. I hope it is better now. It is better, but still some echo is there. But I am using my mobile phone. That is the only अभी concern. अभी ठीक है. It is better now. Please go ahead. Yeah. So good evening, everyone. And now, without wasting any time, I would be starting the issues. So the department has now started the practical application of Form DRC01B and DRC01C. DRC01B was basically if output liability as per 3B is less than output liability as per GSTR1. So department had started issuing notices, and if the notice was not responded, they had blocked the filing of GSTR1 of this month. So during the month of November, we have seen that in various cases, the taxpayer was not allowed to file GSTR1. Similarly, on the same line, there were certain notices. Rather, it is not a notice, it is an intimation that there is a mismatch between your credit as per 3B and credit as per GSTR 2B. And if the credit is above the specified limit, they issue a notice to the taxpayer. So these notices were issued during October, and during November, if these were unattended, intimated to the department, or the reply were not submitted, so they were not allowed to file their forms, that is GSTR1. And we all know that if one is not filed, the entire chain or hierarchy comes to a complete standstill. The second thing, with the cutoff date of 30th of November, ITC reclaim and reversal statement which was produced on the portal. So एक नया statement हमें upload, एक figure upload करनी थी. The last date has already completed. But to my understanding and knowledge, if we have not updated that figure, even then I should be eligible to claim the credits. क्योंकि ये portal के ऊपर एक update था कि मुझे ये reclaim की figure डालनी है. And this cannot be limited. मतलब वो फाउंडेशन नहीं कर सकता, वो lawfully enforce नहीं कर सकती वो अपडेट या जो भी था. And even that press release जो issue हुआ था, it was not even a press release. It was a document uploaded on the portal without any signature, without any significance. तो अगर किसी ने कर दिया तो वेरी गुड, अगर नहीं भी किया तो उसकी कोई लीगल सैंटिटी नहीं है, बिकॉज आई रिसीव सर्टन कम्युनिकेशन कि सर ये नहीं हुआ तो अब इसका क्या होगा. तो टू माय अंडरस्टैंडिंग उसकी कोई लीगल वैलिडिटी या स्टैंडिंग नहीं है. So we will see how the department reacts to it. Third, appeal wherever it was time barred and the order was issued till 31st March. So I have been informed that the taxpayer now can file those appeal, that the option has been made live. And with the condition that the appeal should be filed before 31st of January and with the pre-deposit of 12.5%, out of which 2.5% has to be in cash. So जिसकी भी अपील टाइम पार हो गई थी 31st March 2023 से पहले का ऑर्डर है, they can file their appeal by 31st January. The option is already issued and we can claim the benefit of that option and file the relevant appeal. The only condition is that pre-deposit instead of 10, it will be 12.5, and out of that 12.5%, minimum 2.5% has to be through cash ledger. Then another update was in relation to the VAT DIN, the statutory DIN that has to be now reported on all the document. Vinay sir has already stated this, and we would have seen the document issued by the state government also. So the Delhi state has now recommended that every order, every notice, every communication should also bear a document identification number to ensure the validity and sanctity of the document. So that will be an added check now while representing the cases. And then there was another important instruction number 4/23. It was issued, I think, on 23rd of September. So basically, that instruction is what we were trying to convince the officer while representing the show cause notice. I will start with the state jurisdiction, just VAT वालों ने अभी notices issue करे. So VAT ने issue किया DRC01 online, and they issued annexure to show cause notice. So they issued DRC01 and they issued a attachment to show cause notice. What was missing was show cause notice. So there has to be a show cause notice
basis which a summary will be created in form DRC01, and then there could be relevant attachments to that particular show cause notice. So in many cases, we have while submitting our replies, we challenge the validity of the notices. In center, what we observed was the center was issuing a show cause notice, but in many cases they were not issuing DRC01, that is the summary. So वो सिर्फ DRC01 और proper show cause करते थे, but they were not uploading it or not issuing DRC01. Now this instruction 04/2023 has categorically stated that the compliance of rule 142.1 has to be done. That is, there has to be a show cause notice and there has to be a summary to that show cause notice, which should be uploaded electronically on the portal. Until and unless both these documents are available with the taxpayer, it will be an invalid proceeding or invalid initiation of the proceeding. So earlier we were substantiating this with the provisions of the law. Now we have a proper instruction stating that if this is not complied with, it is not a correct implementation of the law. So this instruction will give a very defensive aspect, especially अगर हमने अभी नहीं लिया है तो अपील स्टेज पे ये सारा एक अच्छा डिफेंस बन जाएगा. Again, coming back to जो VAT का है, so sir, in many cases when I was saying कि DRC01 के साथ उन्होंने attachment to show cause दिया, पर से show cause नहीं दिया, तो many people were of the opinion कि वो show cause notice हो या attachment to show cause notice हो, वो valid है. तो first of all, attachment to show cause notice जो word है, वो मतलब show cause notice की attachment है, पर से it is not a show cause notice. Secondly, if there is a show cause notice, it starts with the allegation कि आपका ये हुआ, या फिर कहीं ना कहीं पे उसमें allegation होना चाहिए that these are the provisions which have been contradicted or which have not been met by the taxpayer, and therefore we recommend this or we propose this liability or you are required to show cause on these particular grounds. VAT ने किसी भी केस के अंदर show cause नहीं किया है. उसने DRC01 में समरी निकाली, अटैचमेंट में लिखा 1 और 3B का मिसमैच इतना है, 1 और 3B और 2A का मिसमैच इतना है, दैट्स इट. कहीं पे भी एलिगेशन उन्होंने मार्क डाउन नहीं किया है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब अभी जो केसेस हो रहे हैं, ठीक है, अगर कोई हमारे अगेंस्ट जा रहा है, वी शुड टेक दोस कॉल्स एट द टाइम ऑफ appeal that these documents or the validity of the proceedings are not correct. And now two judgments जो मैं बत्रा सर को बोलूंगा वो टेक अप करें. One is the Madras High Court Lenovo judgment, recommendatory time limit for refunds, and second is the instruction Association of Technical Textile judgment, जहाँ पे उन्होंने बोला instructions are not binding when it is issued by TRU. सर आप म्यूटेड हैं. Got it. I'll do that. नहीं, लेकिन इसके अंदर बिफोर सर आप बिफोर स्टार्ट जैसे स्मॉल क्वेरी फ्रॉम माय साइड कि जैसे अगर केस आपके फेवर में नहीं भी जा रहा है तो इवन एट द टाइम ऑफ सबमिशन बिफोर द एओ, तो तब भी आपको ये ग्राउंड तो लेना चाहिए कि ये नोटिस वैलिड नहीं है, दिस नोटिस इज फुल ऑफ फ्लॉस. सर लिया होना चाहिए पर उसमें कोई डिनायल नहीं है. आई एम सेइंग अगर नहीं लिए हैं और ऑलरेडी सबमिशन हो गया एंड यू हैव रिसीव्ड द ऑर्डर, क्योंकि अब कट ऑफ डेट पास में है, तो उस केस में मेक श्योर दैट वी टेक इट एट द टाइम ऑफ अपील. प्लीज सर. सर इसमें मेरी एक बत्ता सर से एक और क्वेरी है सर. नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेरी. सेक्शन 16(4) सेज that a taxpayer is eligible to claim credit by 30th of November. यानी मेरे को अपने 3B में 30 नवंबर तक क्रेडिट को क्लेम करना है. There was a supplier who submitted his GSTR1 of October on say 20th November. उसने GSTR1 20 नवंबर को फाइल किया, यानी थ्योरेटिकली मेरे GSTR 2B में नजर आएगा 14 दिसंबर को, क्योंकि वो नवंबर के बाद 13 की कट ऑफ के बाद आया. In that case, what is the state of ITC? क्योंकि वो 2B में नजर नहीं आ रहा एज पर. तरुण पहले रिवर्स में कैलकुलेशन कर ले. 16 डबल है, अब जब तक 2A में नजर नहीं आया, 2B में नजर नहीं आएगा, यू कैन नॉट क्लेम. हाँ जी सर. जी सर. अब मैं एक एक करके तरुण जी ने जो इश्यूज रेज किए हैं उनकी बात करते हैं.
सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट का सर्कुलर दिन का आया है, सर दैट इज नॉट ऑन एवरी डॉक्यूमेंट, नॉट ऑन हाँ एवरी केस, दैट हैज कम ओनली फॉर सर्च, ऑडिट एक्सेट्रा। तो उस नोटिस को देख लें। दिस इज एग्जैक्टली द सेम नोटिस which was issued by the central government when they initially started it. ये सर्च में होगा, नहीं हो सकता तो ये एक्सेप्शन है, फिर आप परमिशन लेंगे। तो अभी हर डॉक्यूमेंट पे ये नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आया हो, आपको इसमें दिन नहीं है और ये इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन स्पेसिफाइड सिचुएशंस। दूसरा डिस्कस की तरुण जी ने एमनेस्टी स्कीम, बड़ा ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया, और मैं इसका बता देता हूं। इस स्कीम का स्कोप सिर्फ वो ऑर्डर्स हैं which has been passed under section 73 और 74। इसमें रजिस्ट्रेशन के, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के, रिफंड के, इन ऑर्डर्स में कोई एमनेस्टी नहीं है। एम आई क्लियर? ये जो आप नोटिफिकेशन है एमनेस्टी वाले, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द डिमांड हैज बीन क्रिएटेड अंडर सेक्शन 73 और 74। ये हर अपील के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी कंडीशन तरुण जी ने बिल्कुल ठीक बताई। Order must be passed before 31st March. You have to file before 31st January, 12.5 and everything is he has explained beautifully. But ये स्कोप में थोड़ा सा इसको एडिशन कर रहा हूं। अब जहां तक क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन नंबर 4 DRC 01 शो कॉज, law says you have to serve the show cause notice. DRC 01 is a procedure wherein the summary of demand. Why they have created this? This is summary of show cause notice. DRC 07 summary of demand being created. The department want to electronically store the whole data and they want to see what has happened to this case ultimately. So they cannot carry with the show cause notices or other things. So what they have stated कि DRC 01 है, फॉर्मेट है, इसका क्या हुआ, इसकी फर्दर अपील गई नहीं गई, that is for controlling purpose. If you look at the judgments, then every judgment of the High Court has very clearly and categorically stated DRC 01 is not a substitute of the show cause notice. It is the service of show cause notice. Summary in DRC 01 is a procedural lapse. तो जैसे तरुण जी कह रहे थे कि सेंटर वाले शो कॉज करते थे, DRC 01 नहीं करते, उनको इंस्ट्रक्शन इशू करनी पड़ी। उसका पर्पस यही था कि सेंटर वालों ने तो प्रोसीजर लैप्स है, आपकी प्रोसीडिंग तो इनवैलिड नहीं होगी, बट हाउ द डिपार्टमेंट विल कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी, भैया इसको करो। उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने से बड़ा क्लियर है, दीज फॉर्म्स हैव बीन formulated only to have a better control in the hands of the government so that they can look at it कि ये शो कॉज हुआ था, अल्टीमेट इसका अपील कहाँ गई, इसका क्या हुआ, फाइनली हाउ इट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। सो दे आर क्रिएटिंग दैट डाटा। कमिंग टू द इश्यू ऑफ 16(4), तरुण जी 16(4) की टाइम लिमिट में आपने दो बातें कही, मैं थोड़ा सा उससे डिफर करता हूं। उन्होंने कहा क्लेम इन 3B। पूरे जीएसटी लॉ में अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ड यूज हुआ है, अवेल, यूटिलाइज एंड टेकन। जहां तक क्वेश्चन 16(4) है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। सप्लायर का तो मतलब ही नहीं है। अगर आप में नहीं आया उस पीरियड तक तो आपका क्रेडिट गया। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 155 आल्सो द ओनस इज ऑन द रिसिपिएंट, दैट इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। सो उसकी तो भूल जाओ सप्लायर ने क्या किया। अगर मेरे यहाँ 30 नवंबर तक नहीं आता है, अब ये आर्गुमेंट दिया गया कि सर ये अक्टूबर की रिटर्न तो 20 नवंबर तक, तो प्रैक्टिकल इसकी टाइम लिमिट 20 हो गई। ऐसा नहीं है। अगर आपने क्रेडिट लेना है और 20 नवंबर तक की आपकी रिटर्न फाइल करनी है, अगर उस रिटर्न को आप 10 दिन लेट कर दें बाय पेइंग द लेट फी, एंड इन केस देयर इज एनी क्रेडिट अवेलेबल, यू कैन स्टिल हैव 10 days because law says you have to claim it by 30th November. अब ये क्वेश्चन मेरे बार बार आता है दिमाग में, two high courts are against me, but in those high court judgments this has never been discussed where you can take the credit. The word is taken in section 16(4), where the credit can be taken. Whether the credit can be taken in 3B, which is only a reporting requirement, or the credit can be taken in my financial books of accounts, where I have already finalized and filed the return with the department,
So once I have filed my income tax return, wherein I have claimed the credit and expense has been debited without GST, or the capital expenditure has been capitalized without GST portion, can one say I have not taken the credit? तो मेरा ये पहला पॉइंट है कि 16(4) का स्कोप क्या है. I have not taken the credit in 3B, ये कहीं नहीं लिखा हुआ. I have not taken the credit. So whether that credit has to be taken in books of accounts or it has to be taken in 3B, in my humble opinion, being a student of accounts, credit can never be taken in 3B. 3B is only a reporting requirement. I am simply saying this is my output tax liability, this is my credit, and this is how much I am availing. I can utilize that credit in my return. But availability can be in 2A, 2B, but the credit can be taken in only books of accounts. With due regard to all the courts, because 2 high courts are against me, I am conscious of that. But all these aspects have not been discussed in those judgments. So ultimately, wherever you feel that there is an allegation that I have not availed the credit, but then that credit was availed in the books of account. The problem will be there in case I have expensed it or I have capitalized it. Then the question is, where is the credit? The question of availment will never come. So in my humble understanding, there need to be very elaborate judgment which discuss the scope of availment, utilization, and taking the credit. Then only this issue will be resolved. But so long as present show cause notices are concerned, wherever this allegation is there, my suggestion will be you must say there is no violation of 16(4). We have already taken the credit in our books of account. Then substantive benefit cannot be denied for procedural lapse. Then it is a asset in terms of Article 300 capital A. So all those legal grounds which are available, you must take and file the reply. And then let us see what is going to happen. The department will never agree to this. So it will take a lot of time to settle this issue. But yes, this is with regard to that. Tarun ji, इस बारे में और कुछ कहना आपने इन क्वेश्चंस के बारे में? Then we'll go to the judgments. So we can move ahead. चलिए, जहां तक क्वेश्चन है जजमेंट का कि टीआरयू हैज नो अथॉरिटी, लॉ में लिखा है बोर्ड. Unfortunately, this judgment has not discussed whether TRU is a part of board or it is not a part of board. If TRU, the railway, is a part of government, then any instruction issued by the government, that aspect has never been discussed. पूरी हाई कोर्ट के जजमेंट में उन्होंने ये प्रेज्यूम कर लिया कि TRU is separate than the board and the board has got the power to only issue the instruction under so and so. दुनिया जाके क्लैरिफिकेशन TRU की आई हुई है. बट इन एनी केस मेरा ये कहना है सर्कुलर हो या क्लैरिफिकेशन हो, इट मे बी इलीगल, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर हैज बीन स्टेटेड बाय द TRU, कांट यू टेक दैट स्टैंड? वन कैन ऑलवेज टेक इट, either it is the revenue or it is the taxpayer. उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक व्यू है उनका. वैसे भी सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग. नाउ द ओनली थिंग इज if you say that benevolent circulars are binding on the revenue, and if we say that this circular, this TRU has no power, so TRU clarification will not be binding on the department, that may be one of the implications. But in my humble opinion, in the whole judgment, nobody has examined whether TRU is a part of board or not. If it is a part of board, then there is no issue at all. So now, in one of the TRUs, on the instruction of the board, we are communicating. So if that being so, then they can always take a stand. But unfortunately, in this case, where the clarification was given, no mention of the board was made. Therefore, this clarification was challenged. एक आपकी जजमेंट लिनोवा, वो किस सब्जेक्ट में थी मैं भूल गया तरुण जी, मैंने शायद देखी नहीं हो या रैंक मिस कर गया. लेनोवो सर, मद्रास हाई कोर्ट. हैं? Regarding लेनोवो मद्रास हाई कोर्ट. regarding टाइम लिमिट और 2 years रिकमेंडरी रिफंड की जो टाइम लिमिटेशन 50 उसको ना मैंने जजमेंट को भी ध्यान से रखा हुआ मेरे बोर्ड पे है, लेकिन मैं उसको पढ़ा नहीं है बिकॉज दैट इज अ वेरी वाइटल इशू, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता. नेक्स्ट मीटिंग में हम करेंगे. और उसके अलावा मैंने एक जजमेंट नोट की हुई थी
जो मेरे हिसाब से बड़ी लैंडमार्क है। पहले तो हमारे यहाँ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अगेंस्ट अपील लाइज ओनली टू द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, देयर इज नो रिकोर्स टू द हाई कोर्ट, but then writ jurisdiction is much wider as compared to the appeal. In one of the case of Naga Limited versus Pondicherry Authority of Advanced Ruling, again Madras High Court, a very interesting subject came into issue, that I am the person who is availing the service of someone, and he is doing loading, unloading, etc. of agriculture produce, wherein I am of the view that this amount is not subject to GST. I am entitled for the exemption in Entry 54E. First of all, the gentlemen apply for authority of advanced ruling. They say that you have no locus standi, it is only the supplier who can do it. When the supplier applied for authority of advanced, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, इससे पूरे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आने वाले हैं। अब दूसरा, जब उसने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में सप्लायर ने किया तो उन्होंने कहा जी इस पर टैक्स लगेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जम्पशन। अब टर्नओवर ह्यूज है, टैक्स लगता है, तो भाई साहब रिट पिटीशन में मद्रास हाईकोर्ट चले गए। अब वहां प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन अपील नहीं लाई करती, बट रिट तो करती है। वहां डिपार्टमेंट ने एक क्वेश्चन उठाया कि जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आई है, दैट हैज कम इन द नेम ऑफ सप्लायर एंड ही इज ओनली द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, इट डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडर्ड। ये कहां से आ गया भाई? उसने कोर्ट में ये कहा कि सर मैं इसलिए आया कि जो इन्होंने अथॉरिटी दी है दैट इज बाइंडिंग ऑन द सप्लायर। नाउ द सप्लायर विल चार्ज जीएसटी, when he will charge, I am the one who is going to suffer ultimately, I am going to bear the incidence of tax. तो कोर्ट ने डिपार्टमेंट से बात करने के बाद उनके ऑब्जेक्शन को ओवररूल करके एक्सेप्ट कर ली रिट पिटीशन कि अल्टीमेटली ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू सफर, सो ही कैन कम बिफोर अस इन रिट जुरिसडिक्शन। तो अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जो कॉमन मिथ है कि भैया अपील में सिर्फ सप्लायर जाएगा और सिर्फ वही रिट में जाएगा, अगर वो आप पार्टी रिट में नहीं जाना चाहती है तो आप अगर रिसिपिएंट है, आप इंसिडेंस टैक्स पेयर कर रहे हैं, तो आप भी रिट में जा सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। फिर उन्होंने ये कहा कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में क्या पढ़ना है। एक वर्ड में उन्होंने बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन की मार्केटेबिलिटी की और ये कहा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है, और अल्टीमेटली दे अलाउड द एग्जम्पशन। टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द टेक्निकल ऑब्जेक्शन बाय द डिपार्टमेंट, आई थिंक हाउ टू रीड द नोटिफिकेशन ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, दिस इज अ गुड जजमेंट रनिंग इनटू 15 पेजेस बट वर्थ रीडिंग इट। इट इज नागा लिमिटेड वर्सेस पांडिचेरी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, 10 नवंबर की है, मद्रास हाई कोर्ट। एक आप ये पढ़ सकते हैं। एनी क्वेरी हैज कम विनय जी? एक ही चैट बॉक्स में एक ही है, वो एक जो तरुण जी से क्वेरी तरुण जी ने रेज की थी उसी के सक्सीडिंग है, एंड दैट इज इन रिलेशन टू आप ये समझ लें। चलिए मैं प्रैक्टिकल इश्यूज पे आ जाता हूं जो मैंने पिछले एक महीने में देखे। एक तो जो लीगेसी केसेस है, गवर्नमेंट हैज डिटरमिन्ड टू सेटल दोस लीगेसी केसेस एट द अर्लीस्ट। So what they have done, whatever service tax appeals are pending, they have collected all those appeal and the jurisdiction has been given to only one officer, Commissioner Appeal 1 and 2 both has been given there. Similarly for excise also there is a one Commissioner Appeal, similarly for custom matter. So they have been given instruction to settle the cases at the earliest. Similarly I was in Bikaji Kama place also in connection with some of the case. तो वहां पे भी जो पेंडिंग एडजुडिकेशंस या अपील्स हैं वो भी बहुत प्रेशर है। और इधर से आप देख ही रहे हो कि शो कॉज नोटिस जो स्टेट ने दिए उसमें वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में गलती हो। मैं केस में गया तो वहां उन्होंने ये कहा कि सर, मैंने कहा ये तो एडवांस तो आपको लेस करना था, ऐड कर दिया। बोले सर हमारे सॉफ्टवेयर में गलती होगी, हम मानते हैं। And you know, because of that, there was a demand of 4 crores. फिर मैंने एक और ऑब्जेक्शन उठाया, बोला ये भी हम मानते हैं सर, हमारे यहाँ ये भी गलती हो गई। फिर मैंने कहा 17.5 के आपने HSN कोड SSC कोड लेके सर्टेन आइटम में ले ली और फेल दिए, इसका क्या मतलब है? बोले हर कुछ तो एक्सेप्ट कर लो।
And believe me, one of the show cause notice where we have not approached the authority, we just file it and somebody from our office has gone and argued it. And without any consideration, that order has already been dropped. So I think after running this software and knowing that these are the shortcomings of the software, there will be a lot of orders where the demand will be reduced considerably. अब उस कंसिडरेबली डिमांड रिडक्शन का आप लोगों ने क्या व्यू लेना है और क्या क्लाइंट से बात करनी है वो आप देखो. मैं उस एंगल से नहीं बात कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ लीगली बता रहा हूँ कि अगर डिमांड कम हुई है या डिमांड ड्रॉप हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑपरेशन का दौर चला है. तो ये थोड़ा सा देख लें. और जहां कहीं भी हो सकता है, जैसे तरुण जी ने कहा कि शो कॉज नोटिस में आप लीगल ग्राउंड भले ही ना लें, वो आप कहीं पे भी ले सकते हैं. बट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इनको आप लाइटली मत लें, जो मेरे कुछ ब्रदर्स कर रहे हैं. व्हेन आई लुक एट द रिप्लाई और मुझे ऑफिसर दिखा रहा है कि सर ये आपके सीए का रिप्लाई आया है, देखिए ये शो कॉज नोटिस एडजुडिकेशन है. लीगली इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिटिगेशन. And secondly, nobody can improve the quality of your cause. Thirdly, in case you are not presenting all the documents on which you want to rely, यहाँ भी आने लगी इको. हाँ, इको मेरे को भी आ रही है सर, पता नहीं क्यों. चलिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट आप नहीं देना चाह रहे, कोई कहता है 300 पेज के कागज है, कोई कहता है 100 पेज के कागज है, कोई कहता है 400 पेज लगेंगे. मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाए, कमिश्नर अपील इसको रिमांड कर सकता है, और एज रिजल्ट ऑफ विच यू हैव टू गो थ्रू दैट रट वंस अगेन. अभी मैंने एक केस आर्ग्यू किया पर्सन टू, यू नो व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर इन्वॉल्व, 3-4 to 7-8 एंड डिमांड इज इन करोड़, और आज इंटरेस्ट की लायबिलिटी उस पर 300 गुना से ज्यादा है 15 साल बाद. तो अगर वो केस हार जाते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फेट ऑफ द क्लाइंट. तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो इतना कह रहा हूं कि ये शो कॉज है. वेयरएवर यू वांट टू रिलाई, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट यू वांट टू रिलाई. इन्होंने तो कोई आरयूडी नहीं दिए, इन्होंने पोस्ट कर दिया, इन्होंने भी शो कॉज को उसकी सैंक्टिटी खत्म कर दी. डिपार्टमेंट ने तो गलती की है, बट जब सब्सिक्वेंट आप लिटिगेशन करेंगे वहां तो ये कोई नहीं देखेगा डिपार्टमेंट का क्या रोल है. तो सारे लीगल आर्गुमेंट आप लेते रहो, बेशक बाद में DRC 01 नहीं था, प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन नहीं किया, ये नहीं किया, वो लेते रहो, कोई इशू नहीं है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे लीगल ग्राउंड्स आप कहीं पे भी ले सकते हो, कमिश्नर अपील पे, ट्रिब्यूनल में. बल्कि ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के बाद भी एप्लीकेशन डल जाती है एडिशनल ग्राउंड के लिए. लेकिन फैक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं सबमिट करोगे, उसके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं. अगर कहीं डिपार्टमेंट ने एट द स्टेज ऑफ अपील थोड़ी सी अकल आ गई उनको, जैसे धीरे धीरे आ भी रही है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा. एंड देन यू नीड, दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी न्यू डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस इन अपील. और जब कमिश्नर को ये समझ आएगी और आप आपके डॉक्यूमेंट को नहीं ले पाएंगे, then you will file an application for additional submission of document. Then again the same procedure आप इनकम टैक्स में करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब सीजनड आदमी है. तो वो सिचुएशन आएगी, उसको थोड़ा सा ध्यान करें. अनसाइंड ऑर्डर, अभी हाई कोर्ट ने कहा as if it is not been signed, so either it should digitally signed, कुछ ना कुछ उस पे होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन. अब एक कंट्रोवर्सी और भी चल रही है, उसको फाइनल ऑर्डर नहीं आया है कि हाई कोर्ट इस बात को एग्जामिन कर रहा है कि जो 169 में सर्विस ऑफ नोटिस है वहां वर्ड कम्युनिकेशन है. सो वेदर पुटिंग द नोटिस और द ऑर्डर ऑन द पोर्टल इज ए कम्युनिकेशन टू द एसएससी. तो फाइनल ऑर्डर नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट ये आपके नॉलेज में डाल रहा हूं. यस, दिस इज आल्सो ए वेरी गुड ऑब्जर्वेशन कि वहां कम्युनिकेशन होना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन आई केम टू नो. अगर मैं ये प्रूव कर दूं मैंने 10 दिन पोर्टल खोला ही नहीं, और मैंने खोला 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद, और उस दिन मुझे कम्युनिकेट हुआ, तो वेदर इट विल बी द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑन द पोर्टल और द डे व्हेन द ऑर्डर हैज कम टू माय नॉलेज, व्हाट विल बी द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस. सो दैट इज वन इशू व्हिच विल बी डिसाइडेड इन द टाइम्स टू कम. अब इट इज ऑलरेडी 3:46. किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें. सर मैं आज से क्वेश्चन सर. हाँ, जगदीश अलमानी जी. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर मेरे एक क्लाइंट ने कुछ
माल बेचा था, गुड्स सेल ऑफ सप्लाई गुड्स किया था, और जो बायर थे उसने गुड्स वापस कर दिए, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट डेबिट नोट इशू कर दिया। और लेकिन हमने जो सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट क्रेडिट नोट ना इशू करके हमने उस डेबिट नोट को इनपुट में परचेज में डेबिट कर दिया, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग आवर आउटपुट लायबिलिटी। इसकी वजह से Ajmani sir, it is a very serious lapse because if you look at section 34, it very clearly says debit or credit note can be issued only by the supplier. जी Recipient का कोई रोल ही नहीं है. जी At the most, wherever you find that this 34 time limit is lapsing और ये मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप उससे जी। फर्दर सप्लाई मंगा लो, वो दोबारा माल बेच दे आपको। ये जो आपने कहा कि उसके डेबिट नोट पे डेबिट नोट जीएसटीआर 1 में जाना चाहिए, उसने क्या डेबिट नोट जीएसटीआर 1 में चढ़ाया? नहीं चढ़ाया होगा। तो उसने तो सर वो गुड्स रिटर्न दिखा दिए ना सर उसने। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो जीएसटीआर 1 में उसकी लायबिलिटी में नहीं आया ना, लैब कोई तो टैक्स जमा कराएगा, तभी तो आप क्रेडिट लोगे। आप ये कह रहे हो कि मैंने जो टैक्स जमा कराया उसका क्रेडिट हो जाए, तो आप क्रेडिट नोट देते और वो क्रेडिट नोट जीएसटीआर 1 में जाता। बिल्कुल जी। क्योंकि आपने जीएसटी का बेनिफिट लेना है ना, इट इज नॉट ए कमर्शियल क्रेडिट नोट। Once it's a credit note along with GST tax, so obviously it need to be reported in GSTR 1 so that you can reduce your output tax liability. That's right. GSTR में liability 100 रुपए की आ रही है, 3B में आ रही है 90 रुपए की। आपने कोई डेबिट नोट 3B में भी liability 100 रुपए की आ रही है, ITC आपने क्लेम कर लिया, मान लीजिए 20 रुपए का इनवॉइस था तो 20 रुपए का, जबकि ITC नहीं मिलना चाहिए था जी। तो वैसे तो आप कह सकते हैं नो लॉस ऑफ रेवेन्यू, concept of unjust enrichment applies to the government also, there is no, तो ये सारे ग्राउंड्स लेके आप लड़ तो सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली लॉस ऑफ रेवेन्यू नहीं है। बट इफ दैट डेबिट नोट इज वेल विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 16(4), अगर वो टाइम लिमिट निकल गई है तो टाइम लिमिट सैक्रोसेंट है, तो हाई कोर्ट हमारे अगेंस्ट है, और यहाँ तो टेकन वाली बात भी नहीं है, तो वो एक अलग इशू हो सकता है। वो 18-19 का टाइम तो निकल, वो 18-19 का सर, तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लड़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट से पहले रिलीफ एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ एक नहीं 3 गलतियां हुई जी। अगर ये टाइम निकल गया था ना, बेस्ट ऑप्शन पता क्या था? आप बाहर को कहते बिल बना दे, माल बेच देता, वापस ई बिल बन जाता, बात ही खत्म, आई क्रेडिट ले लेते आप जी। तो इट विल बी लिटिगेटेड एंड नो रिलीफ एक्सपेक्टेड टिल हाई कोर्ट, दिस इज माय हम्बल पर्सनल ओपिनियन। बाकी तरुण जी बता सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, परमिट मी सर। मुझे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर, उसको फॉरेन ग्रांट मिला है, वो तो इनकम टैक्स हो गया ना जबकि नहीं सर, वो जो है मिला है, क्या वो उसमें क्या जीएसटी लगेगा क्या? देखिए जीएसटी कंसिडरेशन पे है, ग्रांट पे नहीं है, बट समटाइम वी नेम इट एज ए ग्रांट दो इट इज ए कंसिडरेशन फॉर सम एक्टिविटी, then we are in trouble. If that grant is conditional, you will be eligible for the grant only when you do this particular activity. And That's then right. you perform that activity. Then either you call it a grant or whatever name you want to give it to this amount, it will be a consideration because we have to come out of the definition of consideration. What is taxable under the GST law is the consideration. What is really important is we have to see to it, is it a consideration? नहीं, वो क्योंकि उन्होंने हमें ग्रांट दिया है ग्रांट मैं भी कह सकता हूँ टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स। मैं रिलायंस हूँ, टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट, तो फिर ग्रांट का हुई सर? नहीं सर, उन्होंने बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड कंसिडरेशन? जगदीश जी, ग्रांट इज टू फाइनेंशियली एड समबody without expecting anything. जी। Consideration is where I am making payment to you for your obligation to do certain acts. So if I'll give you an example to explain the thing. Let us say there is one NGO which is doing a very good job. Government कहती है यार इसको ये अच्छा काम कर रहा है, बच्चों को कंप्यूटर की एजुकेशन दे रहा है, गवर्नमेंट ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, नो इशू। बट गवर्नमेंट ने उसको कहा कि तू इन बच्चों को पढ़ाएगा, जितने बच्चों को तू पढ़ाएगा हर बच्चे के फीस 10,000 रुपए है, तो उसे 1,000 रुपए लेगा, 9,000 मैं दूंगा एज ए ग्रांट टू यू। विल इट बी ए ग्रांट?
No. Unless otherwise, I don't teach the students, I am not eligible for that amount. Grant का basic purpose है, it has to be given without expecting anything from the person to whom the grant is being given. Then only it will come outside the definition of consideration. So you need to read that definition of consideration in detail and decide whether this grant will fall in consideration or not. What is consideration? अगर आप पढ़े हैं सेक्शन को तो कहता है एनीथिंग विच इज बीइंग गिवन टू रिड्यूस द सप्लाई, और आप कह रहे हो उसने दिया आपको ये काम करने के लिए, देन व्हाई इट इज नॉट अ कंसिडरेशन और व्हाई इट शुड नॉट बी टैक्सेबल? सर ग्रांट कोई भी दिया जाता है उसका तो ये होता है ना चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, एक्टिविटीज के लिए यूज होगा, वो बात अलग है कि ये मैं नहीं बोलता होता, हूं ये को मतलब ये अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं है सर, आपकी ठीक हो सकती है, मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे दे है टू इम्प्रूव हेल्थ सर एंड मैं to आपको improve- ग्रांट देता हूं कि आप ये ग्रांट लेके बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन दो, will it be subject to tax or not? 100% subject to tax. मैं आप एक अच्छा काम कर रहे हो, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए just to aid you financially without putting up a condition कि you keep on doing this job because you are providing education to the underprivileged people, then it's different. But if I put up a condition that you are eligible for the grant only when you do this something, then why it is not a consideration? Now, consideration has been defined to section 31. Kindly read. Any payment, चाहे grant हो या कोई हो, any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, response to, or for the inducement of the supply. So, in case this money is being given to provide some information and some do activity, then it is a consideration. But in this case, a consideration is supply is not to the donor. Its supply is It may be for to a the third party. It may be to a third party. Payment Yeah, can be sir. made to somebody else. अजमानी साहब बात कर कंडीशन, रहे हो? अजमानी साहब ये कहाँ कंडीशनल नाम है है ना। कंडीशन है अजमानी साहब? सर अजमानी सर अपने बच्चों की आप अपने बच्चों की फीस देते हो या बच्चे खुद देते हैं? अजमानी साहब ये कहाँ से लिखा हुआ आ गया जो आप कह रहे हो? कंसिडरेशन मस्ट फ्लो फ्रॉम द रिसिपिएंट, ये कहीं नहीं लिखा हुआ लॉ। नहीं कंडीशनल है ना, ये आपका जो है इट इज नॉट ना अनकंडीशनल। मैं कुछ और कह रहा हूँ। पहली बात जो ये अंडरस्टैंडिंग है कि कंसिडरेशन मस्ट कम फ्रॉम द पर्सन हु इज रिसीविंग द सर्विस is absolutely incorrect understanding of law. बिल्कुल ठीक है, I fully agree, that is okay, well accepted, well taken. एक मिनट बता सर, एक मिनट। नरेश शर्मा इज इक्वइंग पॉइंट इन रिलेशन टू दिस क्वेरी। नरेश जी, प्लीज। हाँ बद्दा जी नमस्कार सर। जो कॉर्पस डोनेशन आता है जो 11(1)(d) में एग्जेम्प्ट होता है, दैट इज फॉर ए पर्पस विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग और व्हाटएवर पर्पस डोनर डिसाइड टू गिव, तो इट मींस कि देन दैट विल आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कंसिडरेशन बिकॉज दैट। एक मिनट, अब अनम्यूट करें, बता सर, अनम्यूट कर ले। जी, do I need to look any other law for the purpose of deciding GST liability when the purpose, charging section, everything has been given in my act itself? नो सर, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ सर। मेरा ये कहना है कि my consideration has been defined in 231. If it is a consideration and you're doing any activity which has got a nexus with it, then no way you can save this tax. No sir, I'm taking your view for corpus donation only, not what you said is very right. You said is very पब्लिक right. हेल्थ, मैं कोई केस का नाम बता रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये केस मुझे एक मेंबर ने रेफर किया था जो यहाँ आते हैं रेगुलर। मैंने ये कहा, जब मैंने केस देखा, मैं कहा ये रिस्की केस है सर, उनका ये मेरा पर्सनल केस है, तो ये फलाना ढिमकाना। मैं कहा फिर आप किसी और को कर लो। हमने वेंकट रमानी को किया, we paid him 6.5 lakh per appearance. We lost the case in tribunal, we lost the case in high court. PHFI. इस केस को पढ़ लें और देख लें, then you will understand. The court was very clear in all the whole judgments. Consideration is for the inducement of supply. If you are doing something at a distance and then only you are getting it. They very clearly stated grant means when you are not expecting any benefit. अगर कहीं पे सर्टिफिकेट में उस कॉर्पोरेट का नाम भी लिखा गया ना, तो वो भी कंसिडरेशन बन जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। This is what I am saying. कोई ये बड़ा इशू सर ये साइटेशन जरा रिपीट कर देंगे सर। साइटेशन मुझे नहीं पता, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया केस का नाम। ठीक
ठीक है सर, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल भी है, सेस्टेट से गया ये ट्रिब्यूनल में। सर सर कौन है? सर, संजय जी। हाँ हाँ सर, एक चीज कहना चाहता हूँ सर मैं। बत्रा सर नमस्कार। वीडियो हाँ जी, नमस्कार। वीडियो भी ऑन कर लो संजय जी, एक बार शक्ल देख लेंगे। चलिए आप अपना बोलते रहे, वीडियो भी ऑन कर लें सर। वो पूछ रहे, ये कंडीशन है क्वेश्चन पूछने की, उन्होंने बंद ही कर दिया क्वेश्चन पूछना। नहीं क्वेश्चन तो बंद नहीं किया। हाँ संजय जी, क्वेश्चन तो ले लो, वीडियो तो डिपार्टमेंट ओपन में होता आए थे ना, रहेगा। उसके लिए। चलिए नेहा जी का एक हैंड रेज है, प्लीज। हाँ प्रहलाद सर, अच्छा सर, बत्रा जी। मैं तो लॉगिन से देखता हूँ सर। हाँ प्लीज, हाँ प्रहलाद सर। हाँ अरे चल यार, एक ही बात। अच्छा, एक वो मिनट, हेलो। तरुण जी एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए। हाँ बत्रा जी। हाँ जी, हेलो हाँ प्रहलाद जी। सर, the CNF agent is doing clearance at the airport and charging the client everything like damage भी, transportation भी, सब कुछ. Now damage what he is paying to the authority, he is getting a credit for the ITC for this GST. Can I claim the ITC? That one. कैमरे में कौन सी आईडी है सर जो ये कंटेनर कॉर्पोरेशन को, सेलिब्रिटी को, दिल्ली कार्गो को देते हैं. सर? वो डिले वेयर हाउसिंग डिटेंशन चार्जेस होंगे, डैमेज नहीं होगा। हाँ, हाँ। कुछ ऐसा होगा। हाँ, अगर आप जीएसटी दे रहे हैं तो रिसिपिएंट के हाथ में तो उसको चैलेंज किया नहीं जा सकता। इफ इट इज इनपुट सर्विस, यू आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि हम उससे चार्ज कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं, और ये हमको क्रेडिट मिल जाता है, कर सकते हैं ना. थैंक यू. फिर एक क्वेश्चन और था, जैसे होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, ही बॉट ए मशीन, अब उसको तो आईटीसी मिलेगा नहीं, जी तो 2 महीने बाद उसको बेच रहा है वो किसी को, जी, तो जो जीएसटी चार्ज लगेगा। करेगा, लगेगा, कैन गेट द क्रेडिट? नो, टैक्स रीइंस्टेट नहीं देना कर पड़ेगा, सकता। क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा. बता सर, उसमें रीइंस्टेट नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं। 2 महीने का आई एम टॉकिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, नॉट इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज. So for 2 months I have used it for exempt supplies, and after that I am per se supplying the asset. I am That is, not it is using, I am not using it for the purpose of making taxable supply. First of all, it was an ineligible credit at the time when it was being purchased. Right. So once it was ineligible at that point of time, subsequent event, can it legalize the credit? no sir, 18 humble के अंदर opinion. I am not remembering the precise clause, but section 18 में एक जगह पे it is specified that if originally the capital goods was purchased for exempt supplies and ना, later उल्टा on है। Taxable supply दोनों में है, cases हैं। later used for exempted supply, then you have to reverse it. उल्टा नहीं है शायद, ये चेक कर लेंगे, मैं है। भी चेक कर लूंगा। हाँ जी। मेरे हिसाब से जिस दिन एग्जाम सप्लाई के लिए मैंने लिया और बाद में टैक्सेबल दिया, उसका ऑप्शन नहीं है। मैंने टैक्सेबल के लिए लिया और बाद में एग्जाम में यूज किया, उसका रिवर्सल मांग रहा है वो। आई विल ऑल्सो वेरीफाई करूं। हाँ जी। और दूसरा, पर से सप्लाई के लिए नहीं है। 17(1) और 2 जो रिवर्सल की बात करता है, उसमें कहीं कैपिटल गुड्स पर से की बात नहीं करता। अगर आप 17(1) और 72 को ध्यान से पढ़ेंगे तो इट टॉक अबाउट व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग ए टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सर्विसेज, व्हेन यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी फॉर बिजनेस और अदर देन बिजनेस। One is business and other than business. There, capital goods per se is not there. So the reversal is required in 17(1) and 72, wherever you are engaged into those kind of business. So a business of restaurant and this supply is being exclusively used for that, and you are buying it there, then this credit is not admissible at all. So 17(1) and 2, in my humble opinion, will not be applicable. Rule 43 में ये लकूना है 43 में कि वो ये कहता है कि once you have purchased it when it was taxable, then you are collecting the credit. Now you are providing exempted service and that is being used. So reversal is required. लेकिन जो बेचेगा तो जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा ना उसको? 100% करना पड़ेगा सर। तरुण जी कुछ और कह रहे हैं। तरुण जी ये कह रहे हैं कि आप कैपिटल गुड्स को हटा दो, सेम फाइनेंशियल ईयर है, तो अगर आप बेच देंगे तो उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। दिस इज व्हाट ही से। ये उसमें ये तो तरुण जी भी कह रहे हैं टैक्स लगेगा। तरुण जी का ये इशू है कि वेदर वी कैन क्लेम द आईटीसी ऑन परचेज ऑफ दैट मशीन। बट अगर फाइनेंशियल चेंज हो गया तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते।
ठीक सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, एक मिनट की प्रहलाद जी, आपका हो गया सर? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सपोज फाइनेंशियल चेंज हो गया, फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब क्लेम दैट क्रेडिट। नहीं, अगर उसको बेच दोगे तो मिल जाएगा ना, अगर वैसे नहीं करेंगे, लेकिन अगर बेचना चाहो तो मिल अब जाएगा। विनय जी ऐसे मत बोलो प्लीज, क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर ये लेना चाहते हैं तो इनको कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी पड़ेगी, जैसे तरुण जी कह रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, में दोबारा भी किताब देख रहा हूँ। हाँ तरुण जी, देखा कुछ? सर नहीं, वो आप कह रहे वही वाला है, वाइसा वर्सा ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिस लकूना। ये तो हमने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं भी चेयरपर्सन बना हूँ, तो हमने ये वन ऑफ दी सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। मैंने परसों ही बजट प्री बजट में देख रहा था, तो वाइस वर्सा है ही नहीं। तो अब तरुण जी भी मेरे साथ है, अब आप सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जी अंकित जी बोलिए सर। सर ये जो केसेस चल रहे हैं 17-18 के, इसमें कोई भी ऑफिसर ना जेन्युइन केसेस में भी कैंसिल डीलर का बेनिफिट दे नहीं रहा है, क्योंकि बहुत लोग रेट्रोस्पेक्टिव हो गए। तो इस पे सर क्या व्यू है आपका, जेन्युइन केसेस में भी? मतलब बिल्कुल ये कहाँ लिखा है सर, जेन्युइन नॉन जेन्युइन? सर 2 केसेस तो सर मेरे को पता ही है, सामने वाली पार्टी के एक अरे पर्सन की मैं ये डेथ हो कह गई रहा हूँ, थी। आपके नॉलेज में लॉ में कहाँ लिखा है? लॉ में यू आर एलिजिबल फॉर द क्रेडिट ओनली व्हेन यू आर सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ 16(2), राइट? सर वो सारी कंडीशंस भी जब सेटिस्फाइड है कि सामने वाले ने नहीं दे रहा आर्मर है। भी। अंकित जी, मेरी प्रॉब्लम क्या है? once a department is taken a stand, then they will follow it. ये बाटा का जूता नहीं है, क्रोल बाग से नहीं पसंद आया, साउथ से ले लिया, नहीं पसंद आया, ग्रेटर क्लास चले गए। या वहां भी नहीं पसंद आया, वहां भी हमने पंगा कर लिया, तो फरीदाबाद से ले लिया, गुड़गांव। ये डिपार्टमेंट ने स्टैंड लिया कि हम नहीं देंगे। आई एग्री विद दैट। और उसमें कुछ कर नहीं सकता, लिटिगेट करेंगे। इफ द अमाउंट इज सब्सटेंशियल विल फाइट। फॉर एग्जांपल, जो आप बात कह रहे हो, मेरे केस में सब्सटेंशियल अमाउंट है, एक केस में 50,000 रुपए। वो कहता सर ये जमा करा दो, बाकी सारे छोड़ देता हूँ। तो मैंने प्रैक्टिकली कहा है जमा कराओ, इतनी बड़ी पार्टी 50,000 रुपए क्या फर्क पड़ता है, ये डिमांड जो 10-12 करोड़ रुपए की खत्म हो जाएगी। आई एग्री, डिपार्टमेंट हैज टेकन ए कॉल, उसको हम लड़ ही सकते हैं ना। लड़ क्या सकते हैं, हमारे पास कितनी डिफेंस है। जब मेरी ट्रांजैक्शन हुई वो रजिस्टर्ड था, रजिस्ट्रेशन किसने दी, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट किसने करना था, आपने करना था। मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये वेरीफाई करने का तो जेन्युइन है नहीं है। आपने सर्टिफिकेट दे दिया, मैंने मान लिया जेन्युइन है। फिर वही नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाले बात, हाउ विल आई मेक श्योर दैट इज, तो ऑल दोस लीगल डिफेंस कैन बी टेकन। बट आई एग्री विद यू कि डिपार्टमेंट उसको रिलीफ नहीं दे रहा है, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो उसकी डिमांड क्रिएट होने दो। कुछ तो ऑफिस भी चलेंगे अपने, नहीं बंद कर रहे हैं। I echo what Batra sir is saying, and to my understanding, internally also the department is not feeling very sound on this front, on this ground, and it's a very good case for litigation. डिपार्टमेंट रिलीफ नहीं देगा सर। नहीं, डिपार्टमेंट नहीं देगा, लिटिगेशन कोर्ट ही देंगे। 100% मिलेगा, 101%। ऑलरेडी केसेस आने शुरू हो गए हैं। हाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है रिलीफ नहीं आया। I agree. I mean, you should not lose any hope. I'm telling you, you have a very good case on this. दिक्कत क्या है विनय जी, आप दो धारी तलवार में फंस गए। डिमांड है 70,000 रुपए की, क्या लिटिगेट करेगा वो? हाँ, वो अलग बात है। देखिए वो सर, अगर विनय के पास जाएगा तो फीस ही 1 लाख रुपए मांग लेगा, तो क्या करेगा बेचारा? वो ठीक है, मतलब वो 70 वहां दे दो, 30,000 बचेंगे, विनय जी को 1 लाख देने से भी जाए। तो ये अमाउंट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। समटाइम यू नीड टू बी प्रैक्टिकल रादर देन लीगल। हाँ ठीक है, वो तो नहीं केस। मैं खुद टैक्स दे के आ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं खुद जमा कराया। आपको एक सब्जेक्ट टू द कंडीशंस है, बाकी मैं सारी बातें आपकी मान लेता हूँ, ये जमा करा दो, मैं ठीक है, ये छोड़ इस आदमी। मैं उससे मांगूंगा, अपील में आएगा तो मैं कहूंगा ले आ भाई एक्स अमाउंट फीस, विच विल सर्टेनली बी मोर देन दिस आईटीसी। क्यों पंगा लेते? देखो, आपको एक अपनी इकोनॉमी तो वर्कआउट करनी ही पड़ेगी आपको। क्या आपको बेनिफिट क्या, व्हाट इज द बेनिफिट एंड व्हाट इज द प्लस एंड माइनस, वो तो है। इट इज इन एनी टाइम। फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी क्वेरी और शुड वी मूव ऑन? नहीं, अब मैं भी निकलूंगा, थोड़ा सा मुझे भी जाना है। ओके फाइन। आई वुड लाइक टू लीव with this word of wisdom by session interactive, with a word of wisdom by the Ashok Batra ji, and having to give good intellects views on the GST, and along with Tarun ji, I thank you both for the uniting the member and giving a very good sound inputs on the GST and updation of the same.
Thank you, members. And now Srishi is with us. Sometimes, because time is not permitting me for, actually, I thought that we'll discuss something on code of conduct and code of ethics also from the institute side. We'll take next month, hopefully, yes. By NLC members, Jagdish Singh Jax will take his course next time. Srishi, are you here? Srishi? So, friends, just wait for a second. He should be here. Srishi? Sir, please. Friends, before I hand over the proceeding to Srishi, I suppose you must have seen already the circulation made by CA Pramod Jain, Central Council member, about the implication of not attaching the Aadhaar with the PAN. And then as per the new provisions of the TDS, we have to go on for higher deduction on TDS and TCS. So be careful. We need to check it because the government is pressing now. The department is also pressing for the demands, and if you notices, must have this to some of the professional friends. So be careful before we file our return, and equally we need to educate to the client also. At the time of deducting the tax, he need to ensure that the TDS, this PAN is connected to the Aadhaar, and the Aadhaar is connected to the PAN. That's what we need to be careful. So Rajiv Jain, hands up is there. Is a hands up for any good reason, Rajiv ji? Rajiv Jain. This is my hands up is on this topic itself. Please. And I think Satish ji can clarify it better. I was reading section 206 AA. It is talking about invalid PANs. And if PAN is not linked with Aadhaar, it is only an inoperative PAN. So what is the difference between inoperative and invalid? Earlier, when we used to file TDS returns manually, there used to be delay in filing of returns, and in CIT appeal, the CIT used to order that this is only a technical or venial breach of section. There is no loss to the exchequer. Here also there is no loss to the exchequer. TDS has been deducted, TDS has been deposited, and the person subsequently makes amends and the PAN is operative again. But first of all, 206 AA talks of invalid PAN only and not inoperative PAN. So I think Satish ji can shed some light. We all have received notices, and whether we can take this defense that this is not invalid PAN, this is only inoperative PAN, and subsequently made operative also. So whether we have to deduct 20% or the normal rate is enough. इसमें देखो एक तो है एनीवे आउट स्टेज विनय जी आप बोल दो। नहीं सर आपके सर नहीं एक मिनट आपकी बात भी सुन लेते हैं बिकॉज इसका कोई डेफिनेट आंसर फैक्ट टू फैक्ट केस टू केस ही बनेगा। क्या है फिर भी आप बोलो ना, फिर आई विल रिस्पॉन्ड। मेरे को तो सर मैं हमेशा प्रैक्टिकल व्यू लेता हूं। अगर आपने कोई काम कर दिया तो लड़ाई लड़ेंगे फिर कैसे भी करके, और नहीं किया है तो इसका एक प्रिकॉशन लेके। ठीक है, ऐसा है। बिफोर आई बिगिन लेट मी विश ऑल माय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। एंड उसके बाद मैं ये बता देता हूं कि पैन इनऑपरेटिव के हर एक के अलग अलग रीजन है। किसी का पैन इनऑपरेटिव इसलिए हो गया कि दो पैन है, डीडुप्लीकेशन है। किसी का पैन इनऑपरेटिव इसलिए हो गया कि किसी ने कोई पेपर फाइल करना था, वो पेपर नहीं फाइल किया एंड ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। और थर्ड ये है कि किसी वजह से टेक्निकल कारण से ब्लॉक हो गया जो उसको भी नहीं पता। तो पॉइंट ये है कि इस चीज में इनवैलिड तो इश्यू ऑलमोस्ट क्लियर है कि इनवैलिड मींस इज इनवैलिड। अब इनऑपरेटिव की कोई टाइमलाइन नहीं है,
इनऑपरेटिव में सिस्टम कब ठीक करेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। तो उसका आपने जो बोला प्रिकॉशन यही है, द इनऑपरेटिव मैन जिसका है उससे कांटेक्ट करके उससे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज इनऑपरेटिव, व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग, एंड इफ दैट डज नॉट गेट rectified within the financial year or etc because of the system defect, तो डिडक्टर के ऊपर कोई पेनल्टी आती है तो उसका रीइंबर्समेंट कौन करेगा? ये तो जवाब है प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली आप आगे चलना चाहें। हाँ, अगर आपने किसी पर्सनल एक केस में कोई ऐसा काम नहीं किया एंड यू आर सैडल्ड विद ए लाइबिलिटी एंड ए बिग लाइबिलिटी, then you have to fight it out in the court कि भाई मेरी क्या गलती है, इनऑपरेटिव है, इट इज नॉट इनवैलिड। तो इनऑपरेटिव तो कभी भी हो सकता है, आज हो गया, इट इज अ डायनामिक सिचुएशन, इट इज नॉट समथिंग विच इज इनवैलिड। मेरा माइंड ये है। नाउ फ्रेंड्स, आई विल टेक यू टू टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीबीडीटी। एक इंस्ट्रक्शन आई है रिगार्डिंग विद होल्डिंग ऑफ रिफंड्स, ये 10 नवंबर की है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ऑफ 23। अब इन्होंने 10 नवंबर में एक्ट में अमेंडमेंट कर दी थी कि वेयर एनी असेसमेंट इज पेंडिंग देन द रिफंड कैन बी विथहेल्ड। अब पहले देयर वर मेनी कोर्ट केसेस, टाटा टेली का था और इधर थे, इन्होंने रिफंड रोक दिए थे विदाउट सैंक्शन ऑफ द लॉ and those were held to be illegal. वोडाफोन में भी रोक दिया था, तो they had to make an amendment because they are bent upon withholding the refunds. तो इसकी वजह से इन्होंने एक नई इंस्ट्रक्शन निकाल दिया ऑफिसर्स के लिए और उसमें उन्होंने लिख दिया है कि where the value of refund is 10 lakh or more. अपनी तरफ से they want to say that we will not be troubling those whose refund is less than 10 lakh. और 10 लाख से ऊपर जो रिफंड है उसमें लैंग्वेज तो वही है कि भाई देयर शुड बी ए प्रॉपर कम्युनिकेशन बाय द फेसलेस यूनिट टू द जियो, जियो शुड assess the risk and reply within 20 days and all that. But now all this, whether the assessee is able to further take cognizance, because 245 का आएगा तो मेल पे आएगा, 50-60% उसको पता ही नहीं लगता और मे बी ही डजंट सी दैट। तो जब तक ये खुद वो उसको फॉलो नहीं करेगा एंड द केस इज अंडर स्क्रूटनी, द रिफंड कैन बी विथहेल्ड, बिकॉज वो अपने घर में इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ऑर्डर पास कर सकते हैं। दैट इज वन इंस्ट्रक्शन which has come, which we all ought to be aware of. Second, एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है which is PIL filed in 2013 by All India Federation of Tax Practitioners. इसमें PIL में 2013 में a road map had been given by the department. He will dispose of the appeals like this. But as per the judgment, Delhi High Court has observed, as per the clarification by CBDT, they require more than 500 CIT appeals to dispose of the appeals in a proper manner, but they have only about 220 or so, 229 to be precise. तो उन्होंने अपील जो है PIL डिस्पोज ऑफ कर दिया ये बोल के कि we appeal to the union government to increase the strength of the CIT appeals and recruit more CIT appeals. So therefore, what does mean? This means the process of appeal is going to be long drawn और आराम से आपके पास छोटी छोटी अपीलें आती रहेंगी जैसे आ रही हैं, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि वी कैन ओनली डू दी अपील वर्क, वी कैन नॉट अपॉइंट, वी आर ओनली सजेस्टिंग कि भाई इनको गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में कंसिडर इंक्रीजिंग दी सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ कमिश्नर अपील्स substantially, at least to 550 such posts to achieve the aims and objectives of the Central Action Plan formulated for the financial year 22-23. So that means कि डिमांड के नोटिस आपको आते रहेंगे और अपील अपने हिसाब से फिक्स होती रहेगी जब भी उनके पास
टाइम होगा या उनके पास वर्कफोर्स होगा। तो दीज आर द टू थिंग्स आई थॉट आई शुड टेक केयर ऑफ। और एक तो जजमेंट सबको पता है, बट आई एम अगेन रिपीटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई है मिस्टर गणेश दास खन्ना के नाम से, वेयर दिल्ली हाईकोर्ट हैज हेल्ड अल्ट्रा वायरस द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीबीडीटी, जहां उन्होंने बोला था कि 2016-17 and 17-18, wherever alleged escapement of income is below 50 lakhs, वो भी रीओपन हो सकता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है दिस जजमेंट विल बी बेनिफिशियल एंड एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ बीइंग जुरिडिक्शनल हाईकोर्ट टू ऑल assessees in Delhi, irrespective whether they have filed the writ or they have not filed the writ. Because this is the law of the land. Now one has to keep the fingers crossed whether the department again goes to the Supreme Court or not. अब उसका तो अभी नहीं पता है, but the judgment is very detailed and a very reasoned judgment, and they have given sound reasoning. So probably we can only hope that the CBDT does not again knock the doors of Supreme Court, and neither the Supreme Court entertains the plea of the CBDT. Friends, this was regarding the 148. बाकी वो 148 तो चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा. Now there are two judgments. I am concentrating more on Delhi High Court, then I will come to some other judgments. There are two judgments of Delhi High Court on the issue of notice under section 143(2). One judgment is in the name of DART Intra-Build Private Limited, and one is in the name of Grand Express, etc. Now both the judgments are on the issue that without issue of notice under section 143(2), assessment cannot be completed. The department's plea of invoking section 292(b) was found invalid by saying that it does not cover the cases where no notice is issued. Now the second judgment is important. DART Infrabuild, the distinction between the first judgment and this judgment is important because this judgment was on account of reopened assessment. Now in reopened assessment, 148 notice had been issued. And in this case, the department took another plea that since the assessee had not filed the return of income within the time given by the AO under section 148, therefore there was no need to issue notice under section 143(2). So here the High Court again said this argument is not valid whether the return has been filed within those time or later on. The non-issue of notice under 143(2) is fatal, and therefore they have struck down the assessment. These two judgments are covering now regular cases as also 148. Sir, what is the citation? What is the citation next now second judgment? Citation तो अभी नहीं आई है कहीं पर. Principal Commissioner of Income Tax 1 versus DART Infra Build Private Limited, ITA number 10/2022. Right. Thank you, sir. अब एक ये है, Madras High Court has struck down the administrative CBDT guideline for compounding of offences where they have given a time of 12 months. तो क्या है कि इस केस में क्या हुआ था कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला हुआ है कि अगर आपने कुछ कंपाउंडिंग करानी है किसी रिटर्न की या किसी ऑफेंस की एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 279(2) में, तो you have to file the application for compounding within 12 months from the date of launch of prosecution. तो इस केस में फैक्ट्स ये थे
कि भाई जो assessee है, she was a lady, she had not filed the return of income, she had filed it after 5 years. 2019 में फाइल करी for assessment year 13-14. The department launched prosecution. She filed the application for compounding after 12 months. The department rejected that, giving reference of the CBDT application guideline कि 12 महीने के अंदर from the date of prosecution नहीं है, तो without going into the merits of the application, they rejected the compounding application. The Madras High Court says that there is no time limit prescribed under section 279(2) of 12 months, and the guidelines issued by CBDT are ultra virus that section. The department said the CBDT has the power as per the act to issue such guidelines and they are mandatory. The Madras High Court said no, and they remanded the matter back to the authority for further examination of the petition on merit and then decide. So this is again on the CBDT, which is hyperactive, and as we know, since now everything is faceless, they are adept in issuing 1 or 2 circulars or instructions after every 1 or 2 days. But whenever they want, they start this, and whether it is implemented or even known is not known. बाकी एक चीज और है, मैं बता देता हूँ, वो भी काफी लोगों को नोटिस आ रहे होंगे, एक्सपायर्ड लोगों को भी आ रहे हैं. इन्होंने एक फैसिलिटेशन सेंटर लिखा है कि हमने बनाया है डिमांड का, उसमें फोन नंबर भी दिया है, फिर लिखते हैं कि हम आपको फोन भी करेंगे, हमारा एग्जेक्टिव इस नंबर से फोन करेगा. अब मुझे नहीं पता कि लोगों के पास फोन आए हैं, बट एनीवे अब कोई भी बच्चा नहीं है जिसकी कोई डिमांड खड़ी है जिसके ऊपर उन्होंने नोटिस नहीं भेज दिया. अब वो सारे के सारे रिकॉर्ड ना तो एसएससी के पास अवेलेबल है, ना वहां पर अवेलेबल है डिपार्टमेंट में. बट एनीवे उसको रिस्पॉन्ड तो कर देना चाहिए व्हाट एवर वे वन कैन, सो दैट एटलीस्ट ये क्लैरिटी तो आ जाए कि भी हमारी तरफ से डिमांड है या नहीं है, विद ए कॉपी टू दी faceless or wherever from the notice has come. Then friends, there is one issue which had been agitated before the tribunals, belated filing of Form 67. Belated filing of Form 67 means the Form 67 is required to be filed with the return of income for seeking credit of foreign taxes as per the form devised by the CBDT. As per their software, if the Form 67 is not filed along with the return, the credit is not given. And in most of the cases, rectification application, even if Form 67 is filed late or belatedly, out of ignorance, negligence, or lack of proper paperwork, then 154 is also rejected. So there are number of tribunal judgments, Bangalore की है, जयपुर की है, but now finally Madras High Court judgment has also come. In the case of Duraswamy Kumaraswamy versus the Principal Commission of Income Tax, where the Madras High Court has held that late filing of Form 67 is not fatal to the claim of getting credit of foreign taxes, even if it is filed late after the filing of the return. So this is the first judgment, to my knowledge, of a high court. Earlier, all sir, citation repeat कर देना sir. ठीक है sir. Duraswamy Kumaraswamy, नाम ऐसा ही है, मैं भेज दूंगा अभिनेत्री को, versus the Principal Commission of Income Tax, writ petition number 5834 of 2022.
बिकॉज इट्स रिट पिटीशन, इसलिए इसका जल्दी जवाब आ गया, अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में शायद अभी 2 साल और लगेंगे। जो ट्रिब्यूनल की जजमेंट्स हैं, अनलेस द डिपार्टमेंट हैज नॉट गॉन अगेंस्ट देम, बट देयर आर 2 जजमेंट्स अगेंस्ट आल्सो। विशाखापट्टनम ट्रिब्यूनल ने अगेंस्ट भी दे रखे जजमेंट इसके। So therefore, this High Court judgment is then more important, because as per the judicial discipline, if one High Court has given a favor, then the tribunal judgment does not have, negative judgment does not have that persuasive value. This High Court judgment will have a better value. Now, a settled position again reiterated by Delhi High Court, that TDS deducted by employer cannot be recovered from the deductee employee as per section 205 of the Act. Now, the basic difficulty in all these cases is that CBDT has also issued an instruction to the officers that they should not recover the tax demand from the employees wherever TDS is deducted from the salary of the employees by the employer, and TDS has not been deducted. However, this is only an instruction on paper. There is no implementation in the CPC. There is no implementation of this direction in the system. That is why the demand is raised, notice is given, and the assessees have to go to the High Court for writ. And then the High Court has number of precedents. Delhi High Court had its own case, Gujarat High Court, Maharashtra High Court, all High Courts have unanimously held that wherever there is a tax deduction by the employer and the credit of that has been taken by the employee while filing his return of income and the TDS has not been deducted, the employee cannot be forced to pay that demand. But whether this writ also will make the department change the software, I can't say, but that is what the law is, and that is what the CBDT also recognizes by its instruction. Then friends, there are 2 judgments on section 50C. Now, these are all procedural. I am concentrating on procedural aspects. Why? Because our half that time is spent in fighting with the system. Whatever may be the consequences, the system overrides the law. And when it overrides the law, we all get frustrated because there is no solution. So then the court comes into the picture. There are 2 judgments, one of Mumbai Tribunal, which says that CPC cannot make an addition under section 50C of the Income Tax Act without giving proper opportunity to assessee. I am actually fully not aware also whether 50C empowers the department to make any addition under section 143(1), because under section 143(1), there are limited spheres where CBDT has been empowered, or CPC rather, CPC has been empowered recently by amendments to make additions, and 50C is not in one of them. So this judgment is a Bombay Tribunal, Prabha Anil Gandhi, which says it cannot be done in 143(1), and simultaneously there is another judgment, another remark in the same judgment, that this adjustment, if any, can be done only in an assessment under section 143(3). So, therefore, if any such adjustment is made under section 154, then an appeal must be filed immediately, because that is ultra vires 143(1). So, that demand will go, but then what happens later on, 143(3) or 148, I can't say, or they will give an opportunity. There are judgments of criminal law, recent judgments. I can't
recollect the names. I suppose I referred to them about 2 months or 3 months back, where the Faceless Appeal Center also has given relief in certain cases by referring to those judgments where those judgments of ITAT has said that wherever 154 applications, petitions are rejected by the faceless CPC regime without giving any reasoning, they should be revisited, and they have set aside, tribunal has set aside those to the files of the AO, or the relief has been given if they are satisfied with the justification given by the assessee. So these were regarding 50C, etc. Now, another 2 judgments, then I think those judgments also reiterate the same thing, but the same issue comes up again and again, whether the foreign commission paid to a non-resident agent who does not have a permanent establishment or a business connection in India is liable to get taxed in India, or whether under Section 195, withholding tax liability is on the deductor. So this is almost settled, and there was a recent judgment of Maharaja Imports of Delhi High Court. But the judgment which I am referring to is for the different reason. There is a slight variation in this case. This case is Sunbeam Light Weighing Solutions Private Limited. This is a tribunal judgment. In this case, the payment of commission was made directly out of India from the export proceeds. Now, income tax provisions are separate, but the RBI does permit, as per the FEMA requirements, to allow payment of commission even to the buyer. It has to be within the limit prescribed, which is 15% of the export value. If the payment is made even to the buyer and it is mentioned in the invoice or other documents, then it is admissible as per the RBI. So this, in this case, this was disallowed, and the tribunal held that since all the provisions of DTA and Section 9, etc., were not applicable, so even if payment made outside India, there is no difficulty and it should be allowed. Now, friends, there is another question, which is a normal question of disallowance of interest under Section 36(1)(3) for interest paid on interest-free advances advanced to associate, sister, or subsidiary companies. Now, this is a very factual topic, but the mother judgment for all this is SA Builders taking refuge, under which, if the commercial expediency can be established, then the interest under Section 36(1)(3), which is disallowed in the hands of the person or the assessee which gives interest-free advances, can be saved and held allowable. So this judgment was DCIT versus Agni Estates. Now this is again a factual judgment, and most of the such judgments are based on SA Builders. Now, 2 more small judgments for which I would like Jain Saab's comment also. This is a judgment for penalty under Section 271 capital C for failure to deduct the TDS wherever the TDS was required to be deducted. Then
late deducted, interest paid, and then visited with liability. Now, this is a judgment of Allahabad High Court, CIT versus Sahara India Commercial Corporation Limited. Now, in this case, the penalty under 271 capital C was levied after the late payment of TDS and after interest under section 2011A had also been paid. The court held that the decision was covered by the decision in the case Allahabad High Court, Ghaziabad Development Authority versus Union of India, according to which they said interest under section 201A is compensatory, and if the recipient SSC has no tax liability, the court emphasized there is no obligation to pay tax by the recipient SSC. Therefore, the deduction of tax by the SSC in default does not arise. So what they say is that if the recipient does not have a tax obligation, then penalty should not be levied under section 271C. This is what I found we need to discuss where he say, pata lagega. Now, I think I don't need to go through many more judgments. One or two are there, but let Veji respond to whatever queries and whatever he has to say. Then, if permitting time, we'll take up that. Thank you, friends, for the patient hearing. I now leave the mic to Vinay. Thank you. Thank you, Stacey, and I welcome Sri Vijayan ji to the forum. Stacey, जहाँ पे आपने थोड़ा सा छोड़ा, मैं तो कह रहा हूँ कि जब वो उसमें पेनल्टी नहीं लगती, सपोज करो जहाँ पे की लाइबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे फिर जो ये सेक्शन अपना जो एडिशनल टैक्स हायर टैक्स रिडक्शन का जो इशू आ रहा है 206AA वाला, वो भी फिर उस हिसाब से सेटल होना चाहिए. वंस दे सेड कि देयर इज नो लाइबिलिटी, देयर इज नो, इट इज रेवेन्यू न्यूट्रल, और इफ द डॉक्यूमेंट्स बीन सबमिटेड एज पर द एसएससी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एसएससी इन डिफॉल्ट. I mean, I'm not concluding. I mean, we are discussing, sir. आपकी बात ठीक है, इसीलिए तो जिक्र किया जा रहा है. बट ये है कि कोर्ट जो करते हैं और जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो गाइडेंस बनती है, बट वो फैक्ट्स तो फिर हर एक के अलग हो जाते हैं. हर एक को अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा ना. हाँ नहीं वो ठीक है, बट you have a good case to fight like on this. Yes, definitely. And but I suppose Jain sir will give an right. Over to you, sir. Over to you, sir. मुझे बोल रहे हैं विनय जी? हाँ सर, आप ही को. अरे वाह. Good evening, friends. I can see a large number presence here, and people are so serious. I could see when Satish ji was speaking, Batra ji was speaking. Why people are so serious after this November going? Every work is over now. I think I'm comfortable. We are eagerly waiting for the new year to come, 2024. That's the issue. I couldn't feel a smiling face, and that's why I posted a message on, I think, chat. Please switch on your video. Request all you all to switch on your videos. जान साहब पहले तो नमस्ते आपको. On the front page of this. जान साहब नमस्ते. नमस्ते नमस्ते चावला जी नमस्ते. आपका फोन नहीं उठा रहे 2 दिन से, आप कहाँ हुआ? अभी देखा ना आपने डायरेक्ट बात कर ली, इसलिए उठाया नहीं कि हम यही बात करेंगे. मैं आई कैन सी फर्स्ट टू मेक माय फोन्स. आई थिंक राजीव जैन जी, आई कैन सी कि दैट वो जैन साहब आपको मिलना है तो कहाँ मिलें? ये कहाँ बैठे सामने हाथ मिला रहे हैं अभी तो देखो फोन पे तो. भाई साहब आप टाई खेलना बंद कर दो तो सबके वीडियो ऑन रहेंगे. आप टाई खेलना बंद कर दो, सबके वीडियो ऑन रहेंगे. बस आपकी टाई से डर लगता है हमें तो. देखो टाई तो पहननी जरूरी है, वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ.
और लेकिन यार, नहीं लगाई तो मैं कोई पेनल्टी लगाने वाला नहीं हूँ। नहीं अब नहीं, आप सतीश जी 271 सी लगा रहे थे, मैं तो नहीं लगाने वाला। आपका टोकना ही बहुत बड़ी पेनल्टी बन जाता है हमारे हाँ, लिए। अब पता लग गया टी शर्ट में आपको। हाँ, और नहीं सर, टी शर्ट के ऊपर स्वेटर भी है। ये अनिल जी श्रीवास्तव जी, आपने क्यों वीडियो क्यों बंद कर रखा है? कपूर साहब ने भी बंद किया हुआ है, वर्मा जी भी आज टीवी वीडियो बंद करके बैठे हैं। या तो जैन कह दो हम साहब, है नहीं आप ऑफिस में, ये- जैसे होता है ना हाँ, अटेंडेंस, पहले जमाने में चश्मा रख जाते थे अपनी टेबल के ऊपर के भाई साहब तो यही अटेंडेंस लग गई है। जैन साहब, हाँ, आप हो कहाँ? मैं 3 ऑफिस में दिन हूँ सर। नहीं, ऑफिस में नहीं हो, आप फोन नहीं उठाते, आप तो रात को फोन वापस करते हो अगर ना हो तो। अब 3-4 दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। I know there's a lot of hectic fixation. I have to read late night, so what पीछे तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में लंबा बहुत मैटर था। तो कल सैटरडे या कल मिल सकते हैं कि हाँ, छुट्टी मिल में? सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई कितने बजे? पहले तो ये पब्लिक के लिए तो सबके सामने पूछ रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, थैंक यू, एक मिनट आफ्टर चॉइस लंच आपकी, चॉइस आपकी है, चाय और समोसे मेरे हैं। कितने बजे आ जाए? कितने बजे आ जाए? 12 बजे आ जाइए अगर हो सकता है तो सर। 12:30 12:30 12:30 फाइन सर, ठीक 12:30। है, थैंक यू। थैंक्स टू चावला साहब। कल का चाय समोसा जैन साहब के ऑफिस में सबके आ लिए, जाइए, आ जाइए। ऑल आर इनवाइटेड। All are invited. Very, very. It's very player. Everyone can come. Open invitation to everyone who has joined it. I can see 69 people in this chat. This तो Zoom. जैन साहब, मैंने अपनी पर्सनल बात करनी है, आप इन सबको ना इनवाइट करो, इनको 2:30 बजे बुलाओ। आपको 2 मिनट बाद बाहर बिठा के बात कर लेंगे, इनसे सबको बुलाना कोई दिक्कत नहीं। And everyone is welcome. चलो ठीक है, थैंक। And my request to all humble friends is that please, that's because it becomes more interactive. Right? This G19 Bar Room meeting, which we call it, the first principle is that it has to be interactive, informal, and free for all. That's how I want to. उसमें कुछ नहीं है। और ये मीटिंग का मैंने देखा एक एडिशनल एडवांटेज है कि when you are sitting in front. अगर आप एक उसमें कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं तो स्पीकर सामने बोल रहा होता है, डायल होती है, बीच में 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता। तो हियर यू कैन हैव 1-to-1 इंटरेक्शन, यू कैन टॉक, यू कैन स्पीक ऑन इश्यूज, वेरियस इश्यूज कंसर्निंग प्रोफेशन। और मैं इसलिए बहुत लाइटली शुरू करता हूँ पहले, जस्ट टू कीप एवरीवन इन्वॉल्व्ड, एक्टिव इन द पार्टिसिपेशन, और ट्राई टू एनकरेज कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, ट्राई टू सी कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी पॉइंट ऑन दिस इशू। सतीश जी ने बहुत सारे इशू छेड़ दिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं और जो सबको थोड़ा सा हैंडल करने में आसानी हो सकती है, आपने देखोगा आजकल ये टीडीएस के प्रोसिक्यूशन के नोटिस बहुत बढ़ रहे हैं। ये इनकम टैक्स वालों के हाथ में 276 भी ऐसा हाथ लग गया है कि सबके हाथ में वो लगा दिया है कि जिसमें भी 25 लाख रुपए से ज्यादा का और वो 3 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट पे किया या नहीं किया, वो सब पे लगा दिया। उसका एक प्रिंसिपल शायद हम थोड़ा सा अगर अपनी प्लानिंग में, अकाउंटिंग में ध्यान कर लें तो शायद ये प्रोविजन प्रोसिक्यूशन वाला अवॉइड किया जा सकता है। आई विल टेक यू बैक टू प्री 1987 एरा। 1987 से पहले एक प्रोविजन था, 10 रुपए अगर वो ज्यादा का किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का फाइल करने में था तो हर एक का प्रोसिक्यूशन हो जाता था। विद द रिजल्ट बिटवीन 87 to 89 बहुत सारे प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुए, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ उस समय। एंड देयर आफ्टर गवर्नमेंट मेड अमेंडमेंट इन सेक्शन 271C एंड 276B। और आपको इसमें पढ़ने की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत क्लैरिटी करने की जरूरत है। प्रोसिक्यूशन तब हो सकता है जब आपने टैक्स काट के जमा नहीं कराया। अगर आपने टैक्स काटा नहीं तो आपका कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है। और हमसे गलती क्या होती है, हमारी एंजाइटी ये रहती है, बिल पीछे आता है, पहले टीडीएस की एंट्री करते। किसी ठेकेदार ने बिल दिया 1 लाख रुपए का, उसकी जब एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट 98,000 से 2,000 टीडीएस पे। इसी तरह से किसी प्रोफेशनल का बिल आया तो उसके ऊपर बिल आया 1 लाख रुपए का, 90,000 रुपए से क्रेडिट 10,000। मेरी ये रिक्वेस्ट है, ऐसे केसेस में जहां आपका फंड फ्लो अलाउ नहीं कर रहा टीडीएस को टाइम पे जमा कराने के लिए, आप उसकी एंट्री स्टेट अवे सीधी करो, 1 लाख रुपए वर्क इन प्रोग्रेस और कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट, टीडीएस की एंट्री करने की जरूरत नहीं।
और टीडीएस की एंट्री जब करो जब आपका पैसा जमा कराने का बन जाए, उस डेट को उसको डेबिट करो और क्रेडिट करके टीडीएस 7 दिन में जमा करो. If we do like this, then 276B prosecution is out. It is 271C capital explanation which will be applicable. I hope I am clear on this issue. अभी भी प्रोसिक्यूशन के जो नोटिस आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट इस इश्यू को सपोर्ट कर दे किसी तरह से. और टीडीएस की रिटर्न भरते समय भी बहुत ध्यान रखना है इस बारे में कि जब वो टीडीएस की रिटर्न भरी जाएगी उसमें डेट ऑफ डिडक्शन वो दिखाई जाएगी बाद वाली. हम अपनी एंग्जाइटी में कि नहीं होगा और इंटरेस्ट जमा करा देंगे देन प्रॉब्लम. एंड वी रन 2 प्रॉब्लम. इंटरेस्ट भी 1.5% जमा कराते हैं इस चक्कर में, नहीं तो अदरवाइज 1% वाली क्लास लगती है इसके ऊपर. और पेनल्टी से डरने की, क्योंकि पेनल्टी आज की डेट में इज मोर कंफर्टेबल टू फाइट इट आउट एज कंपेयर टू प्रोसिक्यूशन. तो आप अगर इसके बारे में वर्कआउट कर लें कि इफ ए पर्सन, क्योंकि डिडक्शन करने के बाद जमा नहीं कराना चीटिंग कहलाता है, क्योंकि आपने सरकार का पैसा रोक लिया और वो पैसा रोक लिया जो आप दूसरे का था. दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिडक्शन तब करें जिस समय की आपका फंड फ्लो अलाउ कर रहा हो पेमेंट कर रहा है. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ 276B. और 271C की जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सिंपल है. इट इज पेनल्टी इज नेवर ऑटोमेटिक. और मेरा ऐसा मानना है, जो सतीश जी अभी बात में लास्ट में टच कर रहे थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वो सामने वाले ने टैक्स जमा कराया है, उसका आंसर बहुत सिंपल है. इफ 201(1) का प्रोवाइजो पढ़ें तो वो आपको हेल्प करता है. इफ द डिडक्टर हैज फेल्ड टू डिडक्ट टैक्स बट द डिडक्टी हैज पेड द टैक्स, देन assessee shall not be, the deductor shall not be considered deemed to be in default subject to fulfilling the condition that deductor has filed the return, it has included the income and paid the tax thereon as per the return. अगर वो assessee डिफॉल्ट में नहीं रहा 201(1)(a) में, तो मेरा ऐसा मानना है दैट पेनल्टी किस बात की लगेगी? इंटरेस्ट लग जाएगा. इंटरेस्ट तो लगेगा. दैट्स द इशू. फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू द date when you have actually paid. That's a separate issue, or the due date of filing return, whatever it is. और पेनल्टी के बारे में आज की डेट में पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन टीडीएस, वो भी क्लॉज लगी हुई है. पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड द टीडीएस अमाउंट. तो ओवरऑल सीलिंग है ना उसमें. लेकिन वो नॉन डिडक्शन की वजह से जो डिसलाउंस होगी ना, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी अगर 31 मार्च तक भी नहीं. अरे प्रोसिक्यूशन तो जहाँ पर 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया प्रोसिक्यूशन मानते हैं, सारे डायरेक्टर के नाम वारंट निकालने की धमकी देते हैं. वो दैट्स मच इजियर. तो लेसन टू बी लर्न. जैसे 48(3) में नहीं किया था लोगों ने वो कैश पेमेंट का. आज की डेट में कितने केस आते हैं? कुछ नहीं आते. सबने कहा भाई 2,000 की पेमेंट है, 2,500 के हमारे तो होती नहीं. तो द सेम वे आज की डेट में सबको क्लाइंट को एडवाइस करना है कि भाई तुम टीडीएस मत काटो जब तक तुम जमा कराने की पोजीशन में. और जिस डेट को जमा कराने की पोजीशन, उस डेट को उसके अकाउंट को डेबिट करो और दिन को दिखाओ कि टीडीएस कटा आज की डेट. और रिटर्न भरते समय भी वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती है उसमें भी बिल्कुल बहुत क्लैरिटी लगती जाए उसके ऊपर. इंटरेस्ट पूरा पे करने के लिए बोलो सर. वहाँ इंटरेस्ट भी कम लगेगा उस स्टेज पे. लेकिन पे करें पूरा, वो तो पूरा कर लेना. 271C की एक्सपेंड पेनल्टी आएगी ना, प्रोसिक्यूशन तो बाहर हो जाएगा ना. कैन यू फाइट इट आउट पेनल्टी? पेनल्टी में तो बहुत सारे केस सपोर्ट करते हैं. पेनल्टी इज नेवर ऑटोमेटिक. पेनल्टी इज सर्कमस्टेंशियल बेस्ड एंड यू कैन ऑलवेज प्रूव इट. नहीं तो प्रोसिक्यूशन तो क्या होता है, सबसे पहले तो जो रीगर मोल्स और उसकी जो तकलीफ आती है वो बहुत चैलेंज होती है, सभी डायरेक्टर की आती है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड. Linked with this issue, there was another issue. Allahabad High Court, I believe, answered this question which I have told you. या 201 का जो प्रोवाइजो है दैट हेल्प्स यू. अगर असेसी डिफॉल्ट में नहीं है तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, सामने का टैक्स आ गया. दो देयर कैन स्टिल बी ए चैलेंज की लगनी चाहिए, बट यू कैन ऑलवेज प्रूव फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी, अदर सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर इज द रीजन ऑफ दैट इशू. अनदर इंपॉर्टेंट इशू वाज द 205. In case the deductor has deducted tax and then the deductive tax cannot be recovered from the deductive on that issue. इसमें जो तीसरी अभी जजमेंट आई है वो एक स्टेप फर्दर आ गई है. पहले ये इशू था कि सेक्शन 205 कहता है टैक्स कैन नॉट बी रिकवर्ड. तो इशू आया था रिफंड के बारे में कि रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट आ गई कि रिफंड भी देना पड़ेगा ऐसे केस में अगर सरकार ने रिकवरी की नहीं की. अब एक प्रॉब्लम आ गई कि डिडक्टर आईबीसी में चला गया, बैंकरप्ट हो गया. ऐसे केस में 205 का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? Now that is the judgment which has come now, and that judgment says
इन केस द डिडक्टर हैज बिकम बैंकरप्ट और आईबीसी उसकी डिमांड डिपार्टमेंट नहीं कर सकता. इट इज बिटवीन डिपार्टमेंट एंड दैट डिडक्टर. डिडक्टी को कोई नुकसान नहीं कर सकता. इट हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट नाउ. रिफंड तो नहीं मिलेगा ना सर उसमें? हाँ जी, उसमें रिफंड तो नहीं मिलेगा ना उसमें? क्यों नहीं मिलेगा? वो रिफंड क्रेडिट तो बिल्कुल बेटेड गवर्नमेंट का होगा. एक बहुत पुरानी जजमेंट थी ओम प्रकाश गट्टाने की गुवाहाटी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच. उसने 205 में ये कह दिया था कि रिफंड मिलेगा. दैट जजमेंट वाज ओवररूल्ड बाय द डीबी डिवीजन बेंच, 2-member bench from the Guwahati High Court itself. But later on, number of judgment has come from Bombay High Court and other high courts also. They say no, even refund has to be granted, because once the tax is deducted, it is an adjustment between government and a deductor and not a deductor. That's the issue. And now thirdly ये भी आ गई है कि अगर ऐसे केस में वो बैंकरप्ट हो गया, रिकवरी भी नहीं हो सकती, तो then even then you have to 205 will be 2-year difference. अब जीएसटी में इसकी प्रॉब्लम आई हुई है. मुझे ध्यान है जीएसटी में कह रहे हैं ना कि अगर वो इनपुट क्रेडिट वो हुआ तो नहीं मिलेगा आपको, सामने वाले ने जमा नहीं कराया हुआ. इसके बारे में भी टसल ऑन है. जब ये एक्ट बन रहा था और उसमें बनने से पहले मिस्टर हसमुख आदिया जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उस समय मेरे साथ एक टीवी प्रोग्राम में थे. उस समय भी मैंने ये सवाल उठाया था कि सब जिसने पेमेंट कर दी परचेज करते समय जीएसटी की, और सेलर अगर जमा नहीं करा था, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेलर. बिकॉज आपने उसको लाइसेंस दिया, आपने उसको रजिस्ट्रेशन दिया कलेक्ट करने का मेरे से, मैंने पेमेंट कर. अनलेस यू मेक एन एलिगेशन, इट इज अ फ्रॉड ऑफ विच टू विच आई एम ए पार्टी. क्योंकि लॉ, सिविल लॉ इज वेरी क्लियर. ए बायर इन गुड फेथ फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन, देन he is entitled to the ownership, subject to that good should not be stolen or should not be a criminal issues. आज की डेट में आप किसी से कोई सामान खरीद के लाते हैं, वर्किंग करके लाते हैं, बायर इन गुड फेथ जिसे कहते हैं, जिसका आपको पता नहीं है, बायर इन गुड फेथ, एंड फिर अप्रोप्रिएट कंसिडरेशन, then there is no issue because title will pass on except when the goods are stolen or something, criminality is involved with that. So same, I believe, principle over a period may come back to GST also on that issue, but subject to that separate issue on that part, on that issues. एक सतीश जी ने वो इशू छेड़ा था कि भाई वो फॉर्म 67 का क्रेडिट मिलने का टीडीएस. उसके लिए मेरा कहना है बहुत सिंपल है. ओवर ए पीरियड इन लास्ट एटलीस्ट 10 years, because of this computerization, what is happening in income tax, which is a good thing, I will say already. But the problem has come up that the taxes which are being paid, how you can deny with the credit. Form 67 is a mean to claim credit. अगर गलती से फाइल नहीं करा तो ये मतलब मेरा टैक्स जो पे किया वो डाउन द ड्रेन है. Foreign tax credit is as good as a tax paid by me. I have paid in a foreign country, but I need to get a credit here. अब आप कह सकते हो कि 67 फाइल ही नहीं किया तो मैं आपको दूंगा ही नहीं. यही प्रॉब्लम आ रही है टीडीएस में. 143(1) की प्रोसेसिंग जो सीपीसी कर रहा है, वो ढूंढता है कि आपकी इनकम कहाँ है, और इनकम नजर नहीं आएगी, उसमें क्रेडिट मिलता है, टीडीएस करूंगा. अभी मैंने 4 दिन पहले केस आर्ग्यू किया, कल ही शायद वो पब्लिश हुआ, वो उसमें आया है, वो नोटिफाई किया है. पावर ग्रिड का शायद केस, पावर ग्रिड मिथिलाचल कुछ करते हो. देयर द इशू जैसे कि हम टीडीएस का क्रेडिट नहीं देंगे. I pose a question to the court. मैंने कहा अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई है, 10 लाख का टीडीएस कटा हुआ है मेरा, आप 143, अब क्या करेंगे ऐसे केस में? अगर मैंने इनकम नहीं दिखाई, आप मुझे 143(2) दो और मेरे को, या 147 दो मेरे हाथ में कि तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की इनकम एस्केप कर गई, 10 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, तुमने इनकम नहीं दिखाई. हाउ यू कैन डिनाई मी द क्रेडिट? टीडीएस क्रेडिट तो मुझे देना पड़ेगा, बट यू मेक एन एलिगेशन अगेंस्ट मी कि 1 करोड़ की इनकम नजर नहीं आ रही है. देन आई विल आंसर यू, वेयर इज दिस इनकम? Because accounting, आज ने आपने ITR कर दी computerized. I cannot put any extra information in that other than what you want from me. Now I have adjusted that interest against my capital work in progress, which is eligible now because it is interest on during construction period. So it is income accounted for. You have to give me a credit. So my view is very clear. In case there is an issue of any payment made by the taxpayer, whether it is TDS, TCS, self-assessment, foreign tax credit or advance tax, whatever it is, you cannot deny the credit on technical ground. सर ये 67 पे विप्रो का जो केस आया था, वो इसमें क्या होगा उसमें? विप्रो का केस 67 पे नहीं था साहब. विप्रो का केस था, आपने ऑप्शन चेंज किया था, डिवाइस रिटर्न का ऑप्शन चेंज किया था, और उस केस को भी बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. वो केस में
वो केस अक्रॉस द बोर्ड नहीं एप्लीकेबल होता, बिकॉज सेक्शन 10A में आपको एग्जम्पशन मिलती है इनकम क्लेम करने की, कि यू कैन क्लेम एन एग्जम्पशन। और अगर आपको सेक्शन 10A नहीं क्लेम करना, क्योंकि आप जब एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो आपको लॉस भी अलाउ नहीं होगा। आई होप यू एग्री विद मी व्हेन यू से कि भाई मैंने 10A की एग्जम्पशन मुझे मिलेगी तो 10A में लॉस भी नहीं मिलेगा, तो आपकी 10 करोड़ की इनकम है तो लॉस भी नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 10A(5) में लिखा हुआ था कि जो आदमी इस सेक्शन को क्लेम नहीं करना चाहता, देन ही शुड फाइल ए डिक्लेरेशन सो दैट ही कैन क्लेम द लॉस। करेक्ट। नाउ द इश्यू अरोज इन विप्रो कि जब उसकी असेसिंग ऑफिसर इनकम कंप्यूट करने लगा तो उसने कहा कि साहब नहीं, मुझे अब इसका बेनिफिट दे दो। देन द कोर्ट सेड कि नो, यू कैन नॉट डू इट नाउ, because what was required to be done at that point of time, you have not done it. You have exercised, you were supposed to exercise that you wanted to claim it, but now you cannot claim in that manner. So that is a separate thing, but that does not mean that you cannot claim, or you cannot claim a extra ground or any concession which is allowable to you, which otherwise not allowable. I have argued this matter at length in Cuttack bench, and the bench has agreed with me on that issue, that I can make any claim at any point of time. अभी एक पंजाब हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है which I am contesting, where assessee originally made a claim under 54B on agriculture land, कि मैंने एक लैंड एग्रीकल्चर बेची और एग्रीकल्चर लैंड ले ली। बाद में पता चला ये फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस निकला, मकान निकला था। फॉर्चुनेटली फॉर असेसी, असेसिंग ऑफिसर ने इंस्पेक्टर बैठ के उसकी फोटो खिंचवा दी। फोटो खिंचवा के वहां से जो वो नोट करके लाया स्टेटमेंट, बोला वहां तो फार्म हाउस बना हुआ है, ये रहते हैं, घर की तरह यूज कर। असेसी ने कहा 54F दे दो। 54 की F की कंडीशन फुलफिल करता हूं मैं, एग्रीकल्चर लैंड बेची है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, यूज इट फॉर फार्म हाउस। अब इनकम टैक्स वाले ने कह दिया मैं नहीं देता, आपने तो ओरिजिनली 54 क्लेम किया था, मैं 54F दूंगा नहीं। आपने क्लेम किया, सीआईटी अपील ने भी कहा कि नहीं, ये तो मिलना चाहिए भाई, आपका क्लेम रिवाइज हो गया तो करना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने भी, जब हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट लड़ रहा है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, 80 करोड़ रुपए की एडिशन है उसमें, डिपार्टमेंट कह रहा नहीं साहब ये तो सारा बदल के लेके कहानी। तो मैंने कहा भाई आपका ग्रीवेंस क्या है तो बता दो, मकान तो आप खुद ही कह रहे हो। अब लड़ाई हो रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार्म हाउस वर्सेस हाउस, दैट्स द इशू व्हिच इज टू बी टैकल्ड विद। देयर आर फ्यू जजमेंट विद सपोर्ट, बट हाई कोर्ट नहीं है इसके बारे में कि फार्म हाउस रेजिडेंशियल हाउस का मीनिंग क्या है। दिस इज द इशू व्हिच इज गोइंग। बट एनी हाउ, अगर टैक्स पे कर दिया है तो आपको क्रेडिट मिलेगा आइदर वे और व्हेनेवर। सर कैन आई ऑन दिस विप्रो, मैं एक थोड़ा सा इसको एक एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ी क्वेरी। सर उसमें था कि रिटर्न जो उन्होंने रिवाइज की और जो क्लेम रिवाइज रिटर्न में लिया, दैट वाज बियॉन्ड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न। व्हाट विल बी सिचुएशन वेयर सपोज maybe say 31st October is the due date of filing return. I file my return in the month of September. एक सलाह, अगर आप बैठे हैं अपने ऑफिस में तो जरा सा किताब खोलें, आपके पीछे लगी हो। मुश्किल कर देता हूँ कुछ लोगों के काम जो क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं सर उसमें मैं उस सेक्शन को पढ़ लें। सर उसको सेक्शन मैंने जब ये जजमेंट आई था उस टाइम काफी माइन्यूटली पढ़ा था। अब मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ, क्योंकि जब मैं आपके लेक्चर दे रहा था तो किताब मेरे सामने होती। ठीक है। अब अगर अपने पास जिसके पास ये नया एक्ट है 2023 का, तो 169 नंबर पेज खोल लें। एक मिनट में एक मिनट उठा लेता हूँ आपका एग्जाम को, अगर एग्जाम है ना। Yes, sir. Yes, sir. पढ़िए जरा, खोलिए, पढ़िए, सेक्शन देखता है। हाँ, 169 आप 1.170 सबसेक्शन 8। हाँ सर, पढ़िए साहब। Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of the section, where the assessee, now this is important, where the assessee before the due date of furnishing the return of income under subsection 1 of section 139
furnishes to the assessing officer a declaration in writing that the provision of this section may not be made applicable to him, the provisions in this section shall not apply to him for any of the relevant assessment year. This is the question. हाँ सर आपको अगर इस सेक्शन से बाहर निकलना है तो आपको एक डिक्लेरेशन 139(1) से डेट से पहले देना है, क्योंकि आपको डबल एडवांटेज दोनों साइड का नहीं रख सकते कि भाई ये भी कह दिया जाए इनकम मेरी एग्जम्प्ट होगी, लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड है। दिस इज क्वेश्चन यही पे है। इनफैक्ट ऑन दिस विप्रो में यही इश्यू राइज हुआ था और जस्टिस एमआर शाह ने इसी लैंग्वेज को पकड़ के कहा था कि साहब ये राइट टू रिवाइज तो रिटर्न है, लेकिन ये तो स्पेसिफिक कंडीशन लगी हुई है। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क है, बट नो डेट ड्यू डेट से इज 31 अक्टूबर। मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल की से 1 अक्टूबर एंड देन आई रियलाइज ऑन 15 अक्टूबर आई हैव नॉट क्लेम्ड। On 15th October, I file a revised return and claiming the श्रीवास्तव जी एक ही बात कह सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन आपने 1 अक्टूबर 15 अक्टूबर वाला कम्प्लीमेंट्री में आंसर नहीं दिया था सर, ये फीस पेड वाला आंसर है। सॉरी समझ गए ना आपने बढ़िया बनाई है, 1 अक्टूबर को करके 15 अक्टूबर को रिवाइज कर दिया। आई एग्री विद यू कि यू कैन डू और यू नॉट कैन डू इट, बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है क्योंकि 139(1) का टाइम बचा हुआ है डिक्लेरेशन नॉट। आई एग्री विद यू, बट इट इज ए क्वेश्चन व्हिच कैन नॉट बी आंसर्ड ऑन अ कम्प्लीमेंट्री बेसिस। टाइम लगा नहीं, मैं सिर्फ के इट वाज ओनली फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आई गॉट योर पॉइंट, नो इश्यू टू दैट पॉइंट। मैंने उस टाइम में भी रेज की, मैंने कुछ जगह फोरम पे कहीं पे बात की इस बारे में कि भाई अगर अरे सभी एक बात ध्यान रखना, हर बार खाना गुरुद्वारे में और मंदिर में जाके और रमजान में खाना एडवाइजेबल नहीं है। एक फोरम में आप जाके एक करते कभी पॉसिबल मतलब वहां अगर रेस्टोरेंट में जाके पैसे दे के भी खाना खाना पड़ता है। नहीं, बट इन दैट केस इट इज ऑर्गेबल केस ना, वो भी सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन तक है। It is on a serious note, this question needs a deliberation, it needs examination, and the issue will be a rather issue because written you can revise and declaration is a separate thing. Whether you can do it because the time period is available, answer on civil logic will be yes, but there can always be challenge whether once a declaration filed cannot be withdrawn because there is no such language in here. Correct. And there is no debar also. Because there is no debar even. जो आपने देखा होगा 115 BAB वहां पर लिखा है कि declaration once filed cannot be changed. But here there is no such condition, so one yes I can do always before 130. I will go with that logic, frankly. Now coming to compounding of offense, ये भी एक नया इशू है जो मद्रास हाई कोर्ट ने राइटली डिसाइड कर दिया कि in the absence of any time period prescribed in section that compounding cannot be, you cannot deny the compounding, but of course guidelines are to be framed. There can be stringent guidelines which maybe can be prohibitive. Now even if there are guidelines that if you ask for prosecution compounding of prosecution before initiation, then the fees is less, but after the initiation it is more, and the period was fixed 1 year, 2 years. So it is still subject to tax because guidelines have to be framed by the government of this time. एक इशू जो आई थिंक आपके सब लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया था डिन के बारे में, शायद आपको आइडिया है नहीं, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर का। नाउ अक्रॉस द बोर्ड ऑल ओवर इंडिया बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जहां कल परसों भी एक एडवर्स जजमेंट आ गई किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। इशू इज कि दैट अगर किसी भी डॉक्यूमेंट लेटर नोटिस के ऊपर which has been issued on or after 1st October 2019, that document is null and void. That assessment order is null and void. Or everywhere these assessment order or appeal can be quashed. अब कोशिश ये होनी चाहिए पहले तो assessment order को पकड़ा जाए, CIT appeal के order भी quash हो सकते हैं, CIT appeal के order भी quash हो सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन CIT के appeal के order quash कराने से पर्पस सर्व नहीं होता क्योंकि इट विल गो बैक टू द CIT, क्योंकि CIT बिल पे टाइम की लिमिटेशन नहीं है। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर क्वैश हो जाए तो फिर उसकी टाइम लिमिटेशन लग जाएगी, देन ही विल हैव नो राइट टू रिवाइव दिस प्रोसीडिंग ऑन दिस इशू। सो यू कैन लुक इनटू दिस एस्पेक्ट, एंड अभी रिसेंटली डिबेट इज ऑन वेदर इट इज एप्लीकेबल ऑन इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस व्हिच बीन सैटिस्फैक्शन एटसेट्रा। आई बिलीव स्टिल द लॉ हैज टू मैच्योर एंड सम जजमेंट हैव टू कम,
We are still working on this issue. And that another point is, जिनमें DIN number लिखा है वो DIN कितना valid है? Because in my opinion, assessing officers generate 3 separate DIN while passing assessment order. One is generated for assessment order, one is generated from the demand notice, and third is generated for the penalty notice if any is to be issued. In my opinion, there have to be 3 different DIN. In some of the cases where DIN has been written by hand on the assessment order, that DIN does not pertain to the assessment order but pertains to the demand notice. If that be so, then you can still challenge that this DIN is not related to the assessment order, but this is a demand notice. Assessment order has to be issued under section 143(3), whereas demand notice is to be issued under 156. In 143(3), it is an order, and in 156, it is a demand notice. So there is a gap and there is a difference between demand notice and the assessment order on that. हाँ जी विनय जी. मेरे से विषय सर, आपने कहा कि वो हैंड रिटन DIN नंबर डालते हैं तो उसकी लीगल वैलिडिटी कितनी रहेगी सर? नहीं देखिए, हैंड रिटन क्योंकि नोटिफिकेशन ये तो नहीं कहता, वो कहता कंप्यूटर जनरेटेड DIN इज अलॉटेड एंड मेंशन्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्डर. दिस इज द रिक्वायरमेंट. कोर्ट ने ये स्टैंड पक्का ले लिया है कि बॉडी के अंदर ऑर्डर नहीं लिखा, DIN नहीं लिखा तो हम नहीं मानेंगे. आपने बाहर लेटर दिया, ये दिया, हम नहीं मानेंगे. बट द क्वेश्चन इज अराइजेस इज कि अगर उसने जनरेट करके और आपके साइन करने से पहले उसने उसके ऊपर DIN लिख दिया हाथ से, तो देन इट कैन बी वैलिड. दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच इज देयर. बट क्वेश्चन इज कि जो साइन करके जो उसने लिखा हाथ से, वो ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर का या डिमांड नोटिस? हाँ ठीक है, वो दैट्स ए सेपरेट इशू. दैट्स अनदर इशू. एक है 148 एक ही जजमेंट जो बहुत दिन से अवेटेड थी, जो मेरे ख्याल हमारी लास्ट मीटिंग के बाद आ गई है. और वो काफी हमने, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से रोज आर्गू कर रहा था हाई कोर्ट में के अंदर, तो दैट्स ए इशू व्हिच इज हैज बीन सेटल्ड. अगर एक ही रिक्वेस्ट है, कितने लोगों ने इसको सीरियसली पढ़ा? अब ये मत कहना जैन साहब एग्जाम ले रहे हैं. इस जजमेंट ने बहुत सारे बातों का आंसर कर दिया. हालांकि ये जजमेंट का क्वेश्चन सिंपल था कि वेदर इन ए केस of assessment year 16, 17 and 17, 2 साल से, बाकी कोई नहीं था. Allegation is of income which is not more than, which is not less than 50 lakh rupees. That in that cases the time period has expired or not on 1st April 2021, and whether TOLA, the taxation amendment and other laws is applicable or not. कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि नहीं, एक्सटेंशन कुछ नहीं होती, it will not relate back to the odd period and this will be null and void. लेकिन इसके साथ साथ कोर्ट ने 2-3 ऑब्जर्वेशन बहुत सीरियसली कर दिए, जिसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है इवन मोर देन 50 लाख विल आल्सो गो, जो 18 दिसंबर को लगाया दिल्ली हाई कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट के लिए. होपफुली दैट शुड बी कंप्लीटेड ऑन दैट डे. बट द चैलेंज इज ऑफ 13-14 and 14-15 and 15-16. The observation made in this judgment, frankly speaking, if applied in neutrality with an open mind, then probably 13, 14, 14, 15 will also not survive. 15, 16 का issue अलग आएगा. But unfortunately, the 13, 14, 14, 15, Delhi High Court has 2 judgments which are against the system. सलील गुलाटी का एक जजमेंट है और एक वो दूसरा जजमेंट है. दोनों जजमेंट अनफॉर्चुनेटली वो अगेंस्ट चले गए. मनमोहन कॉलेज तो पुराना जजमेंट, दूसरा है. तो वो जजमेंट अगेंस्ट जाने की वजह से नाउ द चैलेंज हैज कम अप कि अगर वही हियरिंग होती है, उसी कोर्ट में अगर हियरिंग होती है, तो देन द प्रॉब्लम विल कम अप कि दैट प्रोबेबली दिस विल नॉट हेल्प अस. दैट्स अ प्रॉब्लम आई बिलीव. One will have to face the music on that part, but anyhow, one doesn't have an option but to accept to. एक मिनट, मैं जरा इसी जजमेंट को आपको दिखाना चाह रहा था कि इसके पार्ट में क्या आ रहा है. Anyhow, it's not here. इसमें अगर आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कहीं का पोर्शन पढ़ लेंगे ना, तो you will get to know. If you read para 52, किसी के पास होगे नहीं, it clearly says, apart from anything else, it is para number 52.1.
on page 54, आपके पास शायद नहीं होगी जजमेंट इस समय सामने सबके. Apart from anything else, the aforesaid provision contained in instruction dated 11th May 22 are beyond the power conferred on the CBTT under section 119 of the Act. The paragraph mentioned above are clearly ultra vires the provision of section 149 of the amendment. इससे पेज नंबर Page number 54, top para 52.1. Secondly, para 52.2 further. Furthermore, a perusal of the judgment of the Supreme Court rendered in Ashish Agarwal case would show it did not rule on the provision contained in TOLA or the impact they could have on the reassessment proceeding. In any event, TOLA confirmed no such power on the CBDT. एक्सटेंशन वाली. हाँ. Besides this, as correctly argued on behalf of the SSC, there is no clarity in the aforementioned instruction regarding the original date when such notice were to be issued. The impugned provision of the instruction dated 11 May 22 are also unsustainable in law because they are vague. Certainty in next institute is one of the ground norms as ordinarily they are agnostic to the equitable principles. तो मेरी ये सजेशन है कि अगर इसमें पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो बहुत सारा वर्किंग आ जाएगी. और इसके लिए ये जजमेंट का बहुत सारे लोगों के फोन आए थे, ये जजमेंट एप्लीकेबल होगी जहां लोगों ने रिट लगाई नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है तो दिल्ली हाई कोर्ट की जितनी भी जुडिक्शन है उसके ऊपर ये बाइंडिंग है. अगर आपने रिट लगाई या नहीं लगाई, अगर आपकी स्टेट अपील पे अपील पेंडिंग है तो यू कैन ऑलवेज कोर्ट दिस जजमेंट एंड रिलाई अपॉन दिस जजमेंट. Another good thing which can happen is, जो अभी सब्जेक्ट टू डिपेंड करेगा, जितने भी ये नोटिस इश्यू है 148 के पोस्ट आशीष अग्रवाल, किसी के ऊपर भी दिन नहीं लिखा हो. आपने देखा होगा वो सब दिन के खाली है, दिन का कॉलम खाली है वहां. और ये जो ब्रेंडिक्स वाला जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से आया और जो हम दिन के बारे में कर रहे हैं, आई बिलीव ऑन दैट बेसिस इटसेल्फ ऑल दीज 148 नोटिसेस शुड गेट क्वैश्ड. इररिस्पेक्टिव तोला है नहीं है ये नहीं है तो दिन के बेसिस पे ये सारे नोटिस क्वैश हो सकते. सो नाउ आई बिलीव द बैटल इज ऑन दिस इश्यू एंड दिस इज द ओन इश्यू. और लास्ट टाइम शायद मैंने आपसे शेयर किया नहीं किया था सॉफ्टवेयर के बारे में, लिक्विड टेक्स्ट के बारे में जिक्र किया था, शायद नहीं किया था विनय जी? नहीं किया सर, नहीं किया. देखो, टेक्नोलॉजी का यूज करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. As the department is progressing fast and working is going fast to improve the quality of the work, efficiency, etc., we must use the latest technology on these issues. I can share there is a new software available which is called Liquid Text. Liquid, simple liquid, LIQUID, text TEXT. आज की डेट में मेरे घर पे और मेरे ऑफिस में, मेरी कोर्ट में एक पेपर मेरे हाथ में नहीं होता. कोर्ट के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में देखेंगे, जज की टेबल पे एक फाइल नहीं होती, एक पीस ऑफ पेपर नहीं होता. इस सॉफ्टवेयर के जरिए से, लिक्विड टेक्स्ट के जरिए से एवरीथिंग इज विजिबल. और आपको कहो तो मैं अगर स्क्रीन खोल के थोड़ा सा, अगर मेरा वाला स्क्रीन आप बड़ा कर लें पिन करके, तो आई कैन शेयर विद यू. नहीं, आपके पास शेयर स्क्रीन का तो ऑप्शन है ना आपके पास? नहीं, वो क्या है, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं, मुझे आईपैड में दिखाना पड़ेगा बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर वर्क्स मोर ऑन आईपैड रेदर देन ऑन लैपटॉप एक्सेट्रा. तो अगर आप जरा सा, क्योंकि अभी तो हमने वो खोला हुआ ना बड़े वाला स्क्रीन, आप अगर वो मेरा वाला इंडिविजुअल वाला वो खोल लेंगे ना, ठीक है, स्पीकर वाला जी करें. तो मैं आपको आई कैन जस्ट शो यू कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर कैन वर्क. हालांकि बहुत ज्यादा समझ में आना थोड़ा मुश्किल होगा. दिस इज, आई बिलीव आई कैन टेक यू टू द कैमरा. एक सेकंड, मुझे शायद बैकग्राउंड बंद करनी पड़ेगी एक बार. मैं बैकग्राउंड बंद. लेट मी जस्ट क्लोज डाउन द बैकग्राउंड.
वो चावला साहब की क्वेरी भी रिजोल्व हो जाएगी ना सर, कहाँ बैठे हो? चावला साहब की क्वेरी भी रिजोल्व हो जाएगी ना, कहाँ बैठे हो? आई नीड टू मेक इट आउट कि भाई ये सेटिंग में चावला साहब अभी है नहीं। नहीं मैं हूँ, वो जो मेरी बात है वो घरेलू बात है। अच्छा ठीक है सर, वो जैन साहब से करने वाली बात है, 1 to 1। ठीक है सर, टेक ऑन रिकॉर्ड। I hope now you can see it very clearly. हाँ ये है एक सॉफ्टवेयर. You can see I can open 4 pages. All are here with me, and I can read anyone, close and connect each one pages. ये मेरे पास 1400 पेज की फाइल है, ये बीच वाली जो घूम रही है. ओके. और ये मेरी असेसमेंट ऑर्डर, स्टेट अपील का ऑर्डर है इधर. ठीक है. और राइट वाला इधर ये पेपर बुक है, और इधर मेरे नोट्स हैं, और ये मेरा हैंड में जो मैं चाहूँ लिख सकता हूँ अपने कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कोर्ट के अंदर. अच्छा. और आई कैन गो टू एनी पेज, बट जरा सा यहाँ लगाता हूँ, उस पेज पे चला जाऊंगा, एकदम पेज आ जाए हो जाएगा. इसके अंदर आपकी सारी फाइल 1 मिनट के अंदर आपके टेबल पे है, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. और ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल के लिए हेल्पफुल है. आपको कोई लेटर, कोई वर्किंग, 1 मिनट के अंदर सारा रिकॉर्ड आपके टेबल पे, और जो आप लिखना चाहें हाथ से लिख के वर्किंग कर सकते हैं. जैन साहब, ये जो किताबें हम बाइंड कराते हैं बंद कर दें? एक किताब रखने की जरूरत नहीं है सब बाइंड कराने. आज की डेट में किसी दफ्तर में कोई आईटीआर नजर नहीं आते हैं. यहाँ तो अलमारियां भरी पड़ी हैं, पढ़ते हैं. जैसा ये एप्पल पे काम करता है, सिर्फ एप्पल पे हैं? सिर्फ एप्पल पे काम करता है? नहीं, सभी पे करता है. कोई एंड्रॉइड पे, एप्पल पे, दोनों पे काम करता है. टच स्क्रीन जरूर चाहिए, क्योंकि टच से बेनिफिट ज्यादा मिलता है इसका. और आज की डेट में आपका मिशन हो सकता है पेपरलेस ऑफिस, एब्सोल्युटली पेपरलेस ऑफिस. ऑल दैट इट रिक्वायर्ड, यू नीड टू स्कैन द डॉक्यूमेंट, दैट्स ऑल. एप्पल में सिर्फ इतना बेनिफिट है कि आपके बाकी एप्पल के साथ में कनेक्ट हो जाता है. अगर है क्लाउड पे चले जाते हैं, क्लाउड पे चले, और भी हो सकता है. सी क्वेश्चन इज कि आपको स्कैन करना है, स्कैन करके बुक मार्किंग की जा सकती है. बुक मार्किंग के बाद आई बिलीव ये पीडीएफ की फाइलें आपको आइडिया कि कैसे स्कैन करी जाती है. यू कैन गो टू दैट पेज, रेलिवेंट पेज. इसमें मार्किंग हाथ से की जा सकती है, नोट्स बनाए जा सकते हैं, रेडिली अवेलेबल होगी, और किसी भी चीज की एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. कॉस्ट कितनी है अभी? एक और जो चीज है, अब सारी हाई कोर्ट और सारी ट्रिब्यूनल जूम पे आ गई हैं. नाउ from 14th November 2023 onward, the Supreme Court has ordered every High Court, every tribunal has to provide facility of arguing the case online through Zoom or some WebEx, etc., whatever it is. Correct. So you need not be present physically on this issue also. ये मैंने इसलिए कहा कि अगर आप आर्ग्यू भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी और को देखना आर्ग्यू करते हुए, वो भी आप देख सकते हैं. तो कभी मेरे वाले आर्गूमेंट को सुनना हो तो यू कैन बी ऑनलाइन विद मी सम टाइम टू सी कि कैसे आर्गू होता है इस लिक्विड टेक्स्ट के थ्रू. लेकिन उसमें लिंक कहाँ है उसमें? जहां इसके लिए जवाब बहुत सिंपल था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. नहीं, क्रिकेट मैच देखना हो तो आप पूछते टिकट कहाँ मिलती है? तो लिंक तो जैसा देंगे ना. नहीं क्रिकेट मैच देखना हो तो आप क्या करते हैं? सिनेमा जाना हो, और सब बच्चे कहते हैं, आप मैं ये देखा भाभी जी कहते हैं, बच्चे कहते हैं सिनेमा देखने जाना हो संडे को, तो क्या करोगे अभी आप ढूंढेंगे कौन सी पिक्चर है, कहाँ लगी है, कहाँ से टिकट मिलेगी, कौन से मॉल में जाके पहले लंच करेंगे, फिर 3 से 6 वाला शो देखेंगे, या 6 से 9 वाला शो देखेंगे, करेंगे ना प्लानिंग. तो लिंक ढूंढना क्या मुश्किल काम है? आप ये पूछ रहे लिंक कहाँ से मिले? गूगल में चले पे सर, सुप्रीम कोर्ट लाइव टेलीकास्ट करती है. सुप्रीम कोर्ट के आप कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर हैं, जैसे मैटर ऑफ वो तो अवेलेबल है साइट पे. अरे भाई, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ओके. अगर आपको लाइव देखना है तो आप सुबह 10:30 बजे, 10:15 बजे लिंक किसी से भी ले सकते हैं.
इमीडिएटली कोर्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल है सारे, आप ले सकते हैं। ओनली थिंग इज देयर दे मेक यू टू सर्टेन कंडीशन कि आप बोलेंगे नहीं, इंटरेस्ट होंगे, प्रॉपर होगा, ये कंडीशन है, वो दैट्स अ नेचुरल कंडीशन दे पुट इट टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, दैट्स अ इशू। और ये भी नहीं हो तो शाम को आजकल टीवी लगे हुए, सबके घर में स्मार्ट टीवी हैं, तो उसके अंदर जाके यूट्यूब खोल लें और यूट्यूब में सर्च में जाके थोड़ी बहुत कोर्ट की प्रोसीडिंग टिक कर लें। एक बार कर लिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर बार जब खोलेंगे पहले वहां लेके जाएगा, नए वाले पे। जो रात को रवीश कुमार का शो एक बार देख लो ना, तो बार बार हर बार वो रवीश कुमार का शो पहले दिखाएगा अगले दिन का नया वाला। तो वो मुश्किल काम नहीं है, बढ़िया है। लेकिन मैंने जो मैसेज दिया लिक्विड टैक्स का, वो इसलिए दिया है, my request to all other, because there are many young chartered accountants which will be, I think, in this program here also. अगर वो भी कुछ नई टेक्नोलॉजी बता सकें कि how you can make your life more easy, more comfortable, and you can make easy, कोई ऐप बन जाए जिससे आप अपना क्लाइंट की कंट्रोल करना, फीस का कंट्रोल करना, कितने पैसे आ गए, वो सब उसमें आ सकता है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऑफिस पेपरलेस, एब्सोल्यूट। आज से 3 महीने पहले मेरे घर पे हर रोज शाम को कम से कम 50 kg के 2 या 3 बैग जाते, और रात को 9 बजे बाद वो बैग खोल के पढ़ने 12 बजे तक पढ़ने थे। अब आज की डेट में पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन बैग नहीं जाते, सिर्फ एक आईपैड जाता। नाउ दैट हैज मेड लाइफ इजियर। उसका एक और आराम हो गया, पहले बाहर जाते थे तो प्रॉब्लम थी फाइल कैसे जाएगी, वहां टाइम मिलेगा, पढ़ने का क्या मिलेगा। अब तो आप एयरपोर्ट पर 8 घंटा लाउंज में बैठ के वेट भी कर रहे थे, ऑफिस आपको 3 फाइलें हाथ में दे देता है, फिर लो साहब ये फाइल आपके आगे लिक्विड टैक्स से पढ़ लेना, रास्ते फ्लाइट में डाउनलोड आपने कर ली, फ्लाइट में आपने पढ़ ली सारी, और जहाँ पहुंचे तो आपने आर्गू करके वापस आ गए। अभी क्या था मेरा इसी वीक में 2 भाव, एक इंदौर आर्गू करना था, एक कटक आर्गू करना था। 14 नवंबर से नोटिफिकेशन आ गया, तो 28 तारीख को आर्गू करा इंदौर में, यहाँ दिल्ली बैठ के, 30 तारीख को करा भुवनेश्वर में, कटक में कल बैठ के। अब ये मत पूछना फीस मैंने पूरी ली है उसी की, आजकल क्लाइंट भी पूछने लगे हैं कि फीस आप अगर ऑनलाइन आर्गू करेंगे तो कितनी फीस होगी पड़ेगी, और अदरवाइज कितनी होगी अगर फिजिकली आएंगे। Anyhow, these have been the, I think now we can take few questions. I think these were some of the issues which I think आगे पैसे वैसे तो ऑडिट फीस के सबके पास आई गए हैं सर, ऑडिट पूरे हो गए हैं सब। अब तो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला ऑडिट भी पूरा हो गया, 1 महीना बचा रिवाइज रिटर्न करने का, 31 दिसंबर लास्ट ईयर। करेक्ट। जो गलती हो गई तो रिवाइज रिटर्न करने की, उसके बाद 1 जनवरी से तो फिर उसमें जाना पड़ेगा अपडेटेड रिटर्न। स्क्रूटनी के नोटिस बहुत कम है, आई बिलीव दैट्स लाइफ हैज बिकम कंफर्टेबल। लेकिन सतीश जी ने राइटली कहा, डिमांड नोटिस बहुत सारे पड़े, 48 ही हैं सब, और सरकार ने पता नहीं पुरानी ढूंढ के डिमांडें चढ़ा दी, सारी बात कर दी। नाउ आई थिंक वी कैन हैव फ्यू क्वेश्चंस बिफोर वी वाइंड अप। आई थिंक रसिक जी का पहले तो हम बहुत देर से उन्होंने वो थक गए होंगे, हैंड रेज किया होगा काफी देर से। या जैन साहब, एक क्वेरी है कि जो पीछे जसजीत सिंह वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इन द मैटर ऑफ जसजीत सिंह रिगार्डिंग 153C, इज दैट जजमेंट स्टिल एप्लीकेबल इन द सेंस उसका जो रेशियो है कि जो आपके फ्रॉम द डेट व्हेन इट कम्स टू द हमारे असिस्टिंग ऑफिसर के पास आता है तब से आपके 6 साल प्लस 1 ईयर जो एप्लीकेबल है, इज इट एप्लीकेबल स्टिल एज ऑफ नाउ? क्यों नहीं हो भाई? जो 153C का जो जसजीत सिंह का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बिल्कुल एप्लीकेबल है। आज की डेट में डेट ऑफ सर्च इन द केस ऑफ ए सर्च पर्सन इज एक्चुअल डेट ऑफ सर्च, in the case of other person it is the date when the satisfaction is recorded by the assessing officer for handing over the record. So from that year you have to do it. In case a search has taken place in August 19, then 1920 financial year, 2021 assessment year is the search year. But in case the satisfaction is recorded in 22 April, then 22-23 is the search year, and that assessment year 23-24, and then 6 year behind or 10 year behind, that will become. Just a last very well settled by the Supreme Court. And if you will notice, Supreme Court in that judgment, maybe rightly or wrongly, has quoted the amended section, post-amendment to that. Yes. So, but we have raised an objection to the ITO in this case, and he has said, जी आपका तो केस 1417 से पहले का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपका तो बाद में है, इसलिए जो ऑब्जेक्शन वो उसका हक है लड़ने का, आप भी लड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं। And that because the reasoning given by the Supreme Court apply equally to the post 2017. Yes. Supreme Court has categorically said that the person cannot be in a far more disadvantaged position as compared to the person searched.
उसके पीरियड के लिए आप मांग रहे हो, उसको तो 15 साल बाद पूछ रहे हो आप। ठीक है, एप्लीकेबल। जय साहब, इसमें मेरा क्वेश्चन था कि सर तो ये 8 अक्टूबर 19 में असेसिंग ऑफिसर है इशूड नोटिस फॉर 10 ईयर। अरे 153 कहता है कि इफ सर्च इज कंडक्टेड ऑन 1 April 2021, if search is conducted before 2021, it should take 6 years only. Now the assessing officer is not anything. What should be done? नहीं, आपका कहना है 10 साल के नोटिस आए ना? 10 साल के है सर, बिल्कुल सच कहिए। प्रोवाइजो में 10 साल दिया है ना, प्रोवाइजो में अमेंडमेंट आ गई ना 10 साल। 2017 से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की थी ना फाइनेंस एक्ट 2022 ने। हाँ सर, इज नॉट एग्री। सर्च कंडक्ट हुई है अक्टूबर 19 में, 10 साल की नोटिस भेज दिए। अक्टूबर 19 की सर्च पुराने प्रोविजन में आती है। हाँ, कब कवर होती है सर? पुराने में आती है, और पुराने में 149(1) प्रोवाइजो क्लियरली कहता है कि एन असेसमेंट व्हिच कुड नॉट हैव बीन ओपन्ड एट दैट टाइम अंडर द ओल्ड लॉ। तो ओल्ड लॉ में भी 10 साल थे आपके पास व्हिच सी के लिए, तो 10 साल लगेंगे ना। नहीं, अक्टूबर 19 में सर्च हुई ना सर। अगर 1 April mentioned in the 153C, it is search is conducted on 1 April 21. Then it should be only for 6 years. If before 1 April. नहीं, सी के केस में 10 साल की परमिशन पहले भी थी, अभी भी है। 50 लाख से ज्यादा हो तो 10 साल की है, अगर सब सालों को मिला के है। नहीं, अक्टूबर 19 में सर्च कंडक्ट की है। गोयल साहब सुनिए जी, आपने अक्टूबर 19 की सर्च है, अभी वीडियो ऑफ कर लो क्योंकि आपके शायद आवाज ब्रेक कर रही है उसमें। वीडियो ऑफ कर लो एक बार, आप वीडियो क्लियरिटी नहीं आ रही। अक्टूबर 2019 की सर्च है, आप ओल्ड प्रोविजन में गवर्न होते हैं। ओल्ड प्रोविजन कवर है सर। अब ओल्ड प्रोविजन में 153C में 10 साल का पीरियड था अवेलेबल? नो सर। था ना? अब जिस डेट को उसने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करी उससे 10 साल पुराने तक जा सकता है वो। 10 साल के लिए अगर वो 50 लाख वाली शर्त पूरी करता है 6 साल के बाद, तो वो जा सकता है। ओके। ओनली थिंग है कि हम 9 साल कह रहे हैं आज की डेट में, 10 में नहीं जा सकता, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है रेलिवेंट असेसमेंट ईयर्स 4 years from the end of the assessment years to the end of the relating to the year in which search is carried out. तो उसके वजह से हम कह रहे हैं कि आपको सर्च मिला के 10 साल मिलेंगे, न कि सर्च प्लस 10 साल मिलेंगे। तो 153 तो क्लियरली करेंगे 6 साल होने चाहिए जस्टिस सिंह की जजमेंट से, 6 साल फ्रॉम। नहीं 153C में पहले भी 10 साल का प्रोविजन। तो इट शुड बी टेकन एवरी ईयर 50 लाख से कम में। हाँ, 50 लाख से कम में तो ले सकते हैं, और ईच ईयर इज टू बी सीन इंडिपेंडेंटली। तो हाउ टू सी दैट? अब देखो एलिगेशन वो तो बताएगा ना, सेटिस्फेक्शन नोट में क्या लिखा, किस साल में कितने एलिगेशन लगा। नहीं, सेटिस्फेक्शन नोट में ही हैज नॉट मेंशन एनीथिंग है। सेटिस्फेक्शन नोट में तो उसने कहा कि सर्च कंडक्ट की, अभी तो उसने डिटेल दी नहीं हमें। नहीं, सी में ऐसे नहीं कह सकता, ए में कह सकता, सी में थोड़ी कह सकता। सी में ही हैज टू मेक आउट अ केस, ये मटेरियल मिला है, इसकी वजह से इनकम एस्केप ये हुई है। सी की तो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एंड इट हैज टू स्टैंड द जुडिशियल रिव्यू। ब्लाइंडली थोड़ी कर सकता है। जैसा आप कुछ 13-14 को बता रहे थे, 16-17 में आप जीते। 13-14, 12-13, 13-14 में कह रहा है अगर ये जजमेंट अगर पूरी अप्लाई किए जाए तो ये जजमेंट ने 13-14, 14-15 को भी वर्चुअली नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, ऑब्जर्वेशन दे दी बाय इम्प्लीकेशन। पर उसमें 50 से ज्यादा होगा तो इवन 50 से ज्यादा वाले को भी उन्होंने तो उड़ा दिया ना कि तोला डज नॉट एक्सटेंड द पीरियड। अच्छा, ठीक है, दिन भी नहीं है उसमें तो वैसे भी। भैया जी, एनीथिंग एल्स? आप सर मैं 148 से हट के कुछ इशू डिस्कस कर सकता हूँ सर? पहले बाकी वाले कर ले, हटके वाले बाद में कर लेंगे। उसको भी जब पता लगा ना आज उनको श्रीवास्तव जी को बिल जाने वाला शाम को मेरे
सर ये तो एकेडमिक एक्सरसाइज मैंने भी कहीं ये एक कपूर साहब की कॉल मैसेज है, उनको तो अपील फाइल करनी पड़ेगी। फिर भी कपूर साहब एक बार आप ले लें नंबर। कौन सा कपूर साहब का मैसेज है? आरके कपूर। ससी वाजे सुपर सीनियर सिटीजन who passes away in corona he sold a house in 2016 and purchased another house with no capital gain. However, return was not filed. Now notice was received through a third person in society, and we filed a letter with the death certificate. AO says he have already passed order restriction. SSC never received any shocker nor any interest. ये सब नोट ये तो ऑर्डर इलीगल है। सविता कपिला का केस है दिल्ली हाई कोर्ट का कि अगर डेड आदमी का अगेंस्ट नोटिस प्रोसीडिंग सब डेट शीट दो। हाँ जी सर अपील क्या कह रहे हैं मतलब एक साथ तो नहीं मिलेंगे। हेलो अंशुल जी बोल रहे हैं शायद ना। नहीं कपूर साहब ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये तो आई बिलीव द एसएससी के नाम में हुआ। एसएससी नाउ एसएससी हैड डाइड। हाँ जी। और प्रोसीडिंग सारी डेथ के बाद हुई होंगी। हाँ जी। उसके बाद वो तो प्रोसीडिंग सारी नल एंड वाइड है। यू कैन नॉट इश्यू ए नोटिस इन द नेम ऑफ ए डेड पर्सन। इंस्पेक्टर को ऊपर जाके सर्विस करनी पड़ेगी। सर लेटर बना के हमने दे दिया वहां पे। अपील डालनी पड़ेगी उसकी ना। ठीक लीगल ईयर को लाके अपील डालनी पड़ेगी नल एंड वाइड। ये देख लेना असेसमेंट ईयर कौन सा है, टाइम बार हो गया नहीं हो गया। 16-17 हाँ 16-17 टाइम बार 50 लाख से हाँ नहीं 16-17 टाइम बार है असेसमेंट ईयर नॉट फाइनेंशियल ईयर। तो इसका अपील ही फाइल करनी पड़ेगी या कोई और? हाँ लीगल ऑर्डर लेकर लीगल ईयर के नाम से करना पड़ेगा। दिस ऑर्डर इज नल एंड वाइड। ठीक। गुड इवनिंग सर, एक क्वेरी थी रजत महंगी। बोले जम्मू से आप और जी सर, टीडीएस काटा गया था ऑन एग्रीमेंट टू सेल। फाइनली द एग्रीमेंट वाज कैंसल्ड। तो वो टीडीएस जो है इट इज स्टिल लाइंग ऑन द पोर्टल। हाउ डू वी गेट ए रिफंड ऑफ इट और हाउ डू वी गो अबाउट इट? इसके लिए बोर्ड का एक सर्कुलर है। अगर डिडक्टर ने टैक्स काट लिया है और वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई तो हाउ टू क्लेम ए रिफंड ऑफ दिस। ओके तो देयर इज ए सर्कुलर व्हिच बोर्ड हैज इशूड लॉन्ग टाइम बैक। इफ आई रिकॉल 20 साल पुराना है। एक एफिडेविट फाइल करना होता है कि मैंने टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया ये नहीं किया तो देन यू कैन गेट ए रिफंड। दिस इज अ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड होता है। ओके ऑलराइट, थैंक यू जी, थैंक यू। Vinay ji, we can wind it up now. I think it is 5:35. Thanks a lot for everyone being participating here, and it's a pleasure always to see you all in such large number. और informal discussions बहुत important है to give freely and free and fair. आज question कम थे कुछ। जैन साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप मत ये पूछना मेरी अपील 3 साल से पेंडिंग है। उस बारे में मेरे से सरकार पैसा मांग रही है, क्या करूं? अब तो डिमांड के लिए वो आ गया, अब क्या करें? अरे आएगी डिमांड तो कुछ भाई। सरकार ने जब असेसमेंट ऑर्डर निकाल दिया तो डिमांड तो होगी आपके सिर पे खड़ी। नहीं तो हमने अपील फाइल कर रखी है तो कुछ नहीं होगा। अरे तुम इतने पुराने सीईओ, असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद डिमांड तो डी होगी सरकार की। आप शेयर लो उसकी 20% जमा करा दो। वो ऑलरेडी काट चुके हैं लाख रुपए, तो बैंक से निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो बैंक तो फ्रीज है। अगर 20% से ज्यादा की डिमांड जमा हो गई तो लेगे को लेटर भेज दो कि मैंने इतना जमा करा दिया, मेरी 20% है, बोर्ड सर्कुलर के हिसाब से आप मेरी डिमांड को स्टे कर दो, कर देगा वो। क्योंकि वो तो बैंक से निकाल चुके हैं 1 लाख कुछ रुपए ऑलरेडी। व्हाटएवर इट इज, वेदर आपने दिया है जबरदस्ती निकाला लेकिन 20% जमा हो गया तो आपकी डिमांड स्टे हो सकती है। अभी क्या एक्शन ले सकते हैं कि जल्दी हो जाए काम? क्या मतलब 3 साल तो हो गए। ये तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, पता नहीं आपको हर आदमी की समस्या लाइन कैसे तोड़ूं। हम हाई कोर्ट के जज को कभी कभी कहते हैं ना अर्ली डेट दे दें, जब डेट देने लगता है तो जज साहब कहता है किसकी लाइन तोड़नी है बताओ ना साहब, किसके आगे आपको लगना है। इसलिए आवर प्रॉब्लम इज एवरी डे वी आर लिसनिंग। ये तो है नहीं हम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको सुनते ही हैं रोज। एंड यू से अर्ली डेट दैट आई हैव टू डू इनजस्टिस टू समबडी एल्स फॉर लिसनिंग। So friends, thank you friends. हेलो जैन साहब 12:30 बजे पक्का रात बिल्कुल पक्का। It's a pleasure listening to you, sir. It's a pleasure being enlightened by all your views and opinions, sir. It's always my pleasure to be enjoying and talking and interacting with all my colleagues. That's the biggest point. And sir, one more thing. And that is keeping this momentum for this meeting. I think we have already completed, if not more, at least 35 years. Yeah. We started somewhere in 87, if I am reasonably correct. 87 or 86, I think we started. Sir, one more thing.
Sir, one more thing, sir. छोड़ दे, टाइम थोड़ा सा कम है, भागना पड़ेगा. So विनय जी को let them say thanks to everyone. I don't want to ask anything, sir. One just informative, sir. Sir, जैन साहब. चलिए please 5 seconds please. 5 seconds. सर जैन साहब आपके व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज है सर, बस वो देख लीजिएगा. जरूर देख लो. Fine. Okay, thank you. I can assure you everyone, all mobile phones, messages, all call, I try my best to attend. कभी कभी कोर्ट पे होता हूँ या कहीं और फंसा है, कोई पढ़ाई करनी तो नहीं होता, लेकिन सूनर और लेटर मेरा कॉल बैक जरूर आएगा और मेरा व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई पर्सनल वाला जरूर आएगा. ग्रुप वाले मैसेज के कभी रिप्लाई नहीं आते बहुत सारे, क्योंकि वो ग्रुप डिस्कशन लोगों के चल रहे होते हैं. बट अगर जो पर्सनल मैसेज आया तो आई मेक इट श्योर, आई रिस्पॉन्ड टू दैट. एंड कॉल अगर है तो मिस कॉल है तो सूनर और लेटर जवाब मेरी कॉल बैक जरूर आए. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. With this word of wisdom, friends, thank you very much. Thank you. रितु जी कुछ कहना चाह रही है? रितु जी शायद कुछ कहना चाह रही है. नहीं, thanks to you. बहुत अच्छा informative session था. Thank you. थैंक यू विनय जी. और एक और बात बता दें, आज मैंने AI लगाई हुई थी टू रिकॉर्ड द समरी ऑफ दिस मीटिंग. सो आई विल ट्राई टू, बिकॉज इस जूम ने मुझे जब मैं प्रोग्राम ऑन करता उसमें बताया, विल यू लाइक टू हैव अ समरी ऑफ दिस मीटिंग, लेट AI डू इट. सो आई हैव डन इट. नहीं, वो बीच में आ रही थी, मेरे को समझ में नहीं आई. मैं आज का नया क्या आ गया ये. मैंने भी कर दिया उसको. Anyway, it is wonderful session. सर वो कौन सा AI है जो समरी रिकॉर्ड कर लेता है जैसे वीडियो की? अपने आप पढ़ दो जूम पे. इसने कर दिया रिकॉर्ड. नहीं जैसे वीडियो की समरी ले लें, भी लगा सकते हैं. स्टार्ट समरी सेंड टू द होस्ट. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू सर. वी मीट नेक्स्ट वीक. सर एक बिफोर दैट न्यू हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन विल कम इन बिटवीन. हैप्पी न्यू ईयर. विनय जी एक सजेशन थोड़ा सा दे दीजिए. यस प्लीज. सर अभी लिक्विड टेक्स्ट के बारे में जैन साहब ने बात की. इन द मीन टाइम मैंने आईपैड पे डाउनलोड कर लिया, मगर इसको एजुकेट करना पड़ेगा हमें, आप सब मेंबर्स को फैमिलाइज करना पड़ेगा हाउ टू यूज इट. तो एक टेक्निकल सेशन आप चाहे आप मंथली नहीं, इन बिटवीन कोई एक सेशन रख लीजिए. नहीं करेंगे तो ये ऐसी मीटिंग में नेक्स्ट वाली मीटिंग में कर, नए साल में कर. हाँ एक इसकी जो हाउ टू यूज नेक्स्ट मीटिंग में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. इमीडिएटली फोन पे डाउनलोड नहीं हुआ, फोन पे नहीं हुआ, आईपैड पे हो गया. चलिए. Allow me to conclude, please. Now, thank you, friends. Thanks. Allowed नहीं है. Thank you, Babaji. Thank you, CA agents. I mean, giving an wise, input for Intelix values. And thank you, CA Stishi, for in absence here. And thank you, friends, in attending in large number. Happy New Year in advance to all of you. And we'll be meeting next on 5th of January in the next year. And by that time, hopefully, we'll be having interim budget also. So let's hope we have some good meeting in that time and be ready for the general election also. All the best. Once again, Happy New Year in advance, friends. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.